Well, hello everyone and welcome to the channel. So guys, I hope your preparations are going well and I hope you're doing everything for your exam. So this is another session in one of your marathon session series, and today we'll be discussing some some good questions, some useful questions for your NABARD grade A phase 1 for your English part. So guys, if I'm audible and if I'm visible to everyone, kindly give me a thumbs up in the chat box. Yeah, I think we are live now. So this is a marathon session for your English part, and we'll be discussing uh, around 60 odd questions today, which are basically based on the exam pattern, the pattern of your exam. But before we begin, guys, I know what you need in the last moment. So guys, you must have covered your syllabus, you must have covered each and everything that there is, but then you never know how much you have prepared for. So for that, we have launched an ultimate test series for your NABARD grade A phase 1 exam. It has more than 8,000 solved most important questions, which include, first of all, your chapter wise test for all your subjects. Then there are sectional tests which are included in this course. There are separate current affairs tests, and then you have full length test to simulate your exam. And guys, we are offering flat 60% off on this ultimate test series, and the coupon code is capital test 60. Please remember this, guys. The offer would only be available till tomorrow evening, I mean tomorrow midnight. So this is the best offer, the best thing that you can avail. And the questions are very good, they're very well designed, they're very creatively designed for your exam, so that you can really look into your preparation with this. So good evening everyone. Hello Abhishek, hello Neha, hello Saloni, Kavish, Anuja, good evening Ayusha, hello Kavish. All right, so let's begin, guys. And before we begin, please don't forget to like the session. I know you're regular with the channel, and I hope these sessions will help you in your journey ahead. Good evening, Pooja. Hello, Neha. Hello, Divyanshu. Hello, Soresh. Welcome, everyone. And I hope your preparations are on track, guys. So I wish you all the success in your endeavors ahead. And if you need an ultimate test series to practice to practice questions right before the exam, we are offering flat 60% on this, and the coupon code and the link for this has been given in the description of the video. Good evening, Priya. Hello, Kaveri. All right, so let's begin with the session, guys. Today we'll be discussing 60 questions which are a mix of questions for your exam. So we'll be solving the questions here live with you, so that you get to understand where you stand today, which are the areas that you need to focus upon, right? So keep a pen and notebook with you, or pen and paper with you, and keep on tracking your score. Right at the end, we'll discuss how many questions did you get right and how many did you get wrong. So first, let's start with the first question. Now you're given a close test. Now guys, don't jump to the कंक्लूजन सौरेश दिव्यांशु, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बिना पूरा पैसेज पढ़े आप अपने चॉइसेस ढूंढने लग जाओ. सो the right way is to first read the whole close test without looking at the options. Okay, so I'll read the close test with you, and then we'll solve the questions one by one. The Defense Acquisition Council DAC, led by Union Defense Minister Rajnath Singh, has approved the dash of arms worth rupees 28,732 crore from the domestic sector to boost the Atmanirbhar Bharat scheme. The arms include swarm drones, bulletproof jackets, and carbines. Okay, so it's about about a deal which has been done by the Defense Acquisition Council, where they are acquiring arms which include drones, bulletproof jackets, and carbines. Acceptance of necessity (AON) for capital acquisition proposals of the armed forces amounting to rupees this much crore was dashed by the DAC in this meeting. Considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy dash to our troops deployed along the line of control and in close dash operations in counter-terrorism scenarios, DAC agreed AON for bulletproof jackets with Indian standard BIS 6 level of protection. In recent conflicts across the world, drone technology has proved to be a force multiplier in military operations. Accordingly, to dash the Indian Army's capability in modern warfare, AON for purchase of autonomous surveillance and armed drone swarms has been accorded by the DAC. So this is about something which they are which is a report
about acquisition program and the plan and what has been decided in the plan. So now let's read the blanks and now let's read the choices, guys. So the Defense Acquisition Council led by Union Defense Minister Rajnath Singh has approved the dash of arms, proclamation of arms, prominent of arms, or procurement of arms. What do you say, guys? So I think the correct option is proclamation. You proclaim something. Proclaim is when you announce something that this is what we are going to do. So no. Prominent of arms, no. Prominent is an adjective. So the government has approved the procurement. The only verb that was there which could fit in this blank was procurement. So option C is your correct answer. Very well done, guys. So keep a track of your score. Okay, this is I'm asking all of you, keep a track of your score, and in the end we'll discuss कितने questions ठीक हुए कितने गलत हुए. And guys, please don't forget to like the session. Okay, we are doing so much for you. The least you can do is at least just push a button so that the video more people and they can get benefited from it. So let's move to the second question, to the second blank, guys. Acceptance of necessity for capital acquisition proposals of the armed forces amounting to rupees 28,732 crore was dashed by the DAC in this meeting. Was coincided, rescinded, or accorded by the DAC in this meeting? Yes, guys, once again, quickly give me your answer. And guys, I want all of you to participate in this. So, drone technologies proved to be, necessity capital acquisition program, armed forces amounting to rupees, this now was coincided by the DAC, rescinded by the DAC, or accorded. Very well done, guys. Again, coincided is when people luckily come together. Rescinded is refuse, but accorded, that means approved. So only 3 was the right option. So C is the correct answer. So acceptance of necessity for capital acquisition proposals of the armed forces amounting to rupees itna was accorded by the DAC in this meeting. Now moving to the next blank, guys, blank number 3. Considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy, considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy dash to our troops deployed along the LOC. So against the threat of enemy, snipers, snippet, or snipper. I think this is very easier. Considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy, sniper, snippet, or snipper. Oh, okay, guys, please go back to question number 2 again. Somebody has reminded me, Abhishek. Yes. So guys, please look at the question. मैंने भी नहीं देखा, by the way. Please look at the question carefully. Which of the following word is inapt for blank? Blank B. So coincided is inapt, rescinded is inapt, accorded was correct, right? So we had to find which of the following words is inapt for the blank. So 1 and 2. So D was the correct option. Very good, Abhishek. Good observance, guys. ये observance बहुत ज़रूरी है, by the way. ठीक है, अब ये हो जाती हैं तो प्लीज मेक श्योर यू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं करना है. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, अभिषेक. ठीक है, तो वी फाउंड द राइट choice here. Now for blank number 3, blank number C, which of the following words is apt for blank C? ठीक है, so considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy, what is buffering, guys? Just let me check. No, guys, I think this is absolutely working fine at my end. So what we did here was, I don't know what the issue is, guys. So we are working for blank number D. So considering the demand for enhanced protection against the threat of enemy snipers to our troops deployed along the LOC and in close dash operations, in close concord operations, in close truce operations, or in close combat operations. Again, please remember we have to find which are the words which are inapt for blank D.
So in close concord operations, close truce operations, or close combat operations? You have to find which of the following word is inapt for blank D. Please read the instructions carefully, Ayushi. At the max 5, अभिषेक, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं. क्लोज टेस्ट पे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आते हैं तो, नॉट मोर देन दैट. इनएप्ट एप्ट होता है जो निपुण होता है, somebody who is very somebody who is good at something. So an apt मतलब सही, जिसको हम बोलते हैं ना करेक्ट in the sense. So this is an apt answer. So that is what is called the meaning of the word apt. Inapt क्या होता है? जो सही नहीं है, right? चलो, so we have to find which of the following words is inapt. See, in close combat operations बिल्कुल सही था यहाँ पे. Close truce operations कुछ नहीं होता, concord होता है. दोनों truce मतलब जब दोनों में संधि हो जाती है, concord का मतलब भी जब दोनों में दोस्ती होती है. So concord and truce, these were the wrong options. So option D was the right option again here. गाइज आई एम वाचिंग द वीडियो राइट नाउ, पर मेरे इसमें बफर नहीं हो रहा है. मैं भी देख रहा हूँ सेशन साथ के साथ आपके कमेंट्स देखने के लिए. सो आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स बट माय वीडियो इज नॉट स्टक. आई एम नॉट व्हाट द इशू इज. एक बार रिफ्रेश करके या कुछ ऐसे करके देख लीजिए एक बार, श्रेष्ठा. राइट, एंड फिफ्थ क्वेश्चन फॉर ब्लैंक नंबर ई. In recent conflicts across the world, drone technology has proved to be a force layer in military operations. Accordingly, to dash the Indian Army's capability in modern warfare, AON for purchase of autonomous surveillance and armed drone swarms has been accorded by the DAC. So accordingly, to dash the Indian Army's capability, to abate, to accelerate, or to augment. Yes, guys. So which of the following words is apt for blank E? So accordingly, to dash the Indian Army's capability in modern warfare, AON purchase for autonomous surveillance and armed drones has been accorded by the Defense Acquisition Council. So accordingly, to abate the Indian Army's capability, accelerate or augment. All right, so let's see if it is better now. I've tried to change the connection. Hopefully it should work fine. Yes, guys, kindly let me know if it is better now. Yes, guys, am I audible? Am I visible now? अरे हाँ भाई, कर लिया चेक यार. Better? I think it would be working a little better now. So चलो, तो for fifth question, what was the right answer? Accordingly, यहाँ पे दोनों ठीक हो सकते थे. To accelerate the Indian Army's capability, और ये भी सही हो सकता था to augment the Indian Army's capability. So both 2 and 3 were correct. So option E was the right option. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो था हमारा क्लोज टेस्ट. अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, विच यू मे फील कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्या. तो लेट्स बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, वो आजकल उसने बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया. सो ही कैन क्रिएट न्यू सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस जस्ट टू कंफ्यूज यू, जस्ट टू पुट यू अंडर प्रेशर, और उसी को आपको फाइट करना है वहां पे. राइट, सो अब ये नेक्स्ट देखना, नए टाइप का क्वेश्चन है. A small passage is divided into 7 parts, but only 4 parts of the passage is given to you. So basically guys, there are 7 sentences naming A, B, C, D, E, F, G. So there are 7 sentences, but you are only given 4. Right, there are a few which have been left blank. So you have to identify the missing parts of the sentence from the following options and also answer the questions asked from the given parts of the sentence. तो अब देखो देखो समझ आ रहा है आपको उसने क्या दिया है. मतलब 7 सेंटेंसेस थे, उनमें से उसने सिर्फ 4 दिए आपको. ए दिया है, बी नहीं है, सी दिया है, डी नहीं है, ई दिया हुआ है, एफ नहीं है एंड जी दिया हुआ है. राइट, अब इनमें हमें एक तो मिसिंग पार्ट ढूंढने एक तो, और कुछ एक उसने और जैसे ब्लैंक दे दिया यहाँ पे ए, आई थिंक ए बी सी डी ई दिया है, तो आई थिंक इसमें वो शायद एरर ढूंढने को कहेगा. राइट, सो वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन. तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको पहले, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. द रेनी सीजन इज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स फॉर हेयर ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द environment and rainwater cause hair to fall.
So the rainy season is one of the worst seasons for hair due to excess moisture in the environment and rainwater cause hair to fall. So आगे उसने दिया it is grown naturally in many parts of the world, especially in warm and moist land. Okay, in Southeast Asia, the dried whole plant is used in traditional medicine. Dash there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. Okay, and then plant is used in India from ancient period. It is regarded as kayakalp herb, meaning incredibly effective herb. Okay, so it is about, I think, a traditional medicine that has been used in India and the Southeast Asian region. So let's find the missing sentences and let's look at the questions, right? So first, which of the following options can fill the blank H? अब blank H कौन सा है? अच्छा, second sentence कौन सा है? हमें ये ढूंढना है गाइस इसमें. तो एक बार पढ़ते हैं. The rainy season is one of the worst seasons for hair due to excess moisture in the environment and rainwater cause hair to fall. Right? अब यहाँ पे second blank में क्या आना चाहिए? People who are suffering from major hair fall are suggested to use Mahabhringraj. To overcome hair fall during the rainy season, Ayurveda suggests Bhringraj oil made with Bhringraj plant. Or third, but most commonly this plant is used for making Ayurvedic hair oil. Yes guys, which of these three sentences can fit in blank B? So you've read the sentences. Now which of these sentences can fall after this? And before this, वो भी देख के चलना एक बार. It is grown naturally in many parts of the world, especially in warm and moist land. So people who are suffering from major hair fall are suggested to use Mahabhringraj. To overcome hair fall during the rainy season, Ayurveda suggests Bhringraj oil made with Bhringraj plant. Very well done, guys. See, B is the right option. Why? The rainy season is one of the worst seasons. जिस चीज की फर्स्ट सेंटेंस में बात होती है उसी कंटिन्यूएशन में हम अगली बात को कनेक्ट करते हैं हमेशा. Am I right? So the rainy season is one of the worst seasons for hair due to excess moisture in the environment and rainwater cause hair to fall. I think यहाँ पे ये cause नहीं है, causes होना चाहिए. Rainwater causes hair to fall. ठीक है, यहाँ causes है गाइस, cause नहीं है, तो ये देख लेना एक बार. तो यहाँ पे सही आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. नहीं, बी हम यहाँ पे सही है, ए को नहीं मान सकते सही. क्यों? क्योंकि देखो एकदम से ये बोलना कि देखना एक बार, द रेनी सीजन इज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स फॉर हेयर ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट एंड रेन वाटर कॉजेज हेयर टू फॉल. तो यहाँ पे पूरे सीजन का इम्पैक्ट हेयर के ऊपर बात हो रही है. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर हेयर फॉल, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट है एक. सो इसलिए हम उसको वहाँ पे बीच में एकदम से फिट नहीं कर पाएंगे. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर हेयर फॉल आर सजेस्टेड टू यूज महाभृंगराज. यहाँ पे सही क्या बनता है? टू ओवरकम हेयर फॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. उस सीजन के लिए बात कर रहा है क्योंकि उसने शुरू वहां से किया है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल द ब्लैंक आई? तो मतलब आई थिंक थर्ड वाला, हाँ ये वाला. तो पहले हमने क्या दिया? द रेनी सीजन इज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स. ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि टू ओवरकम हेयर फॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन आयुर्वेदा सजेस्ट भृंगराज ऑयल मेड विद भृंगराज प्लांट. फिर उसने बात की इट इज ग्रोन नेचुरली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन वार्म एंड मॉइस्ट लैंड. ठीक है, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए? डी में देखना है. और एक बार ई भी पढ़ लो. In Southeast Asia, the dried whole plant is used in traditional medicine. Dash, there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. So it is grown naturally in many parts of the world, especially in warm and moist land. अब इसके बाद इनमें से क्या सेंटेंस आना चाहिए? It is used in different parts of the world for different purposes. The juice obtained from the fresh leaves is said to be useful in treating cough. Bhringraj also stops graying of hair. It conditions your hair naturally and make it shiny. Yes, guys. सी वाले का तो वहां लॉजिक ही नहीं बन रहा था. पूजा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था उसका. तो कोई वो रेनी सीजन में हेयर फॉल्स है, दैट्स वाई वहां पे सी नहीं आ सकता था. Yes, guys. What are you guys thinking? A? So what are you saying? It is grown naturally in many parts of the world, especially in warm and moist land. Okay, it is grown naturally in many parts of the world, especially in warm and moist land.
अब इसके बाद, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, या द जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश लीव्स इज सेड टू बी यूजफुल इन ट्रीटिंग कफ, और द भृंगराज ऑल्सो स्टॉप्स ग्रेइंग ऑफ हेयर. नहीं, तो आई थिंक द ओनली कनेक्टिंग सेंटेंस हेयर वाज ऑप्शन नंबर ए, that it is found in different parts of the world and it is used in different parts of the world for different purposes, right? Now फिर उसने साउथ ईस्ट एशिया पे आया स्पेसिफिकली वो, कि इन साउथ ईस्ट एशिया द ड्राइड होल प्लांट इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन डैश देयर इज नो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च टू इंडिकेट सच यूजेस आर इफेक्टिव. तो अब देखते हैं इसमें क्या, इसका क्वेश्चन क्या है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन फिल द ब्लैंक जे. तो अभी इसके बाद हमें देखना है क्या आना चाहिए गाइस यहाँ पे, मतलब थर्ड ब्लैंक में क्या आना चाहिए. तो इन साउथ ईस्ट एशिया द ड्राइड होल प्लांट इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन डैश देयर इज नो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च टू इंडिकेट सच यूजेस आर इफेक्टिव. और उसके बाद द प्लांट इज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, इट इज रिगार्डेड एज कायाकल्प हर्ब मीनिंग इनक्रेडिबली इफेक्टिव हर्ब. सो ठीक है, इन दोनों के बीच का सेंटेंस अभी हमें ढूंढना है. So it is used in treating medicine. Dash there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. For this plant is used in India from ancient period. Yes, guys. Siddha saints have praised the herb for its medicinal properties in Siddha texts hundreds of years ago. It improves the blood flow to the roots by increasing vasodilation. It opens the hair follicles and promotes hair growth. Yeah, in parts of South India, it is used to grind traditional chutney from the plants grown in the paddy field. Yes, guys. देख लिया हमने तीनों सेंटेंसेस. मैं एक बार दोबारा से आपको ब्लैंक दिखाता हूँ. इन साउथ ईस्ट एशिया द ड्राइड होल प्लांट इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन डैश देयर इज नो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च टू इंडिकेट सच यूजेस आर इफेक्टिव. और फिर द प्लांट इज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, इट इज रिगार्डेड एज कायाकल्प हर्ब मीनिंग इनक्रेडिबली इफेक्टिव हर्ब. सी तो नहीं होगा गाइस, देखो, क्योंकि वो क्लियरली वहां पे उसने पहले ही उसमें उसने बोला हुआ कि इट इज यूज्ड इन इंडिया. अब उससे पहले ये बोलना इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया इट इज यूज्ड टू ग्राइंड ट्रेडिशनल चटनी, तो दिस डजंट मेक सेंस. तो हम ये वाले ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचा ए या बी. ये तो क्लियर है. अब ए या बी में से कौन सा आपको लॉजिकल लग रहा है, या दोनों ये हो सकते हैं? Yes, guys, what do you think is the right answer? A or B? In Southeast Asia, the dried whole plant is used in traditional medicine. Dash, there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. The plant is used in India from ancient period. It is regarded as kayakalp herb, meaning incredibly effective herb. आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. रीजन बीइंग, देखो गाइस, उसमें पहले वो उसे मेडिसिनल यूजेज की बात कर रहा है वो, कि द होल प्लांट इन साउथ ईस्ट एशिया. अब वो अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग, देखो उससे पिछला सेंटेंस क्या था, इट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट? ये बात हुई थी आई थिंक यहाँ पे डी में. फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इन साउथ ईस्ट एशिया द ड्राइड होल प्लांट इज यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन डैश देयर इज नो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च टू इंडिकेट सच यूजेस आर इफेक्टिव. एंड फिर उसने क्या बोला, दिस प्लांट इज यूज इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, इट इज रिगार्डेड एज कायाकल्प हर्ब मीनिंग इनक्रेडिबली इफेक्टिव हर्ब. ठीक है, अब मैं वो सिद्धा वाला अगर वहां पे डालता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बन रहा है, वो उसी को एंशिएंट हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. लेकिन फिर बीच में एकदम से ये बोलना कि इट इंप्रूव्स ब्लड फ्लो टू द रूट्स बाय इंक्रीजिंग वसोडिलेशन, इट ओपन्स द हेयर फॉलिकल्स एंड प्रमोट्स हेयर, और फिर उसको दोबारा से वहाँ पे हेयर वाली बात वो बीच बीच पहले खत्म हो चुकी थी, राइट? सो ऑप्शन ए वाज द राइट ऑप्शन, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 9. द स्टेटमेंट ए इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स इन विच ओनली वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एरर. मार्क द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब वही मैं कह रहा था ना, उसमें शायद वो एक सेंटेंस में आपसे एरर डिटेक्शन भी पूछेगा. तो उसने ए सेंटेंस में बोला गाइस क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है, आपको ढूंढ के बताना है. मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ सेंटेंस नंबर ए. The rainy season is one of the worst seasons for hair due to excess moisture in the environment and rainwater causes hair to fall.
Very good, Priya. Very good, Sorish. Your observance should be up to the mark. Very good, Rachna. The rainy season is one of the worst seasons for hair due to excess moisture in the environment, and rainwater causes hair to fall. The error here was in part D. See guys, this excess means permission to enter. The right word to be used here was EXCESS, excess, which is more than required. So due to excess moisture in the environment and rainwater causes hair to fall. So option D was the right option. So access, वो A वाला access जो होता है वो होता है access to enter somewhere, access to visit something or visit some some place or something. So access is permission. जबकि EXCESS वाला pronunciation is basically are both the same. So this access is more than required. So this was the error. So D part had an error in it. And there is one more question. In statement E, a blank is given. Choose the correct word from the following options. Blank दिया हुआ है हमें हाँ E sentence में, ये हम देख रहे थे. तो इस blank में क्या आना चाहिए guys? In Southeast Asia, the dried whole plant is used in traditional medicine. Dash comma देख लेना एक बार guys. Comma dash there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. Hence, thereupon, although, consequently, or yet. क्या आना चाहिए guys? Hence, thereupon, although, consequently or yet. सेंटेंस दोबारा पढ़ देता हूँ. In Southeast Asia, the dried whole plant is used in traditional medicine. Dash, there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. Yes guys. Hence, there is no clinical research. Thereupon, there is no clinical research. Although there is no clinical research. Consequently or yet. So, consequently, thereupon, hence नहीं आ सकते. Hence और thereupon क्या होता है? इस वजह से. Consequently भी क्या होता है? इस कारण. लेकिन वो तो contradiction दे रहा है. या तो but हो सकता था यहाँ पे, या although हो सकता था. ठीक है? Yet होता है उसके फिर भी. लेकिन the right answer is although. No, the questions will be displayed constantly. On the right there will be the question right of the screen, and on the left you will be able to read the passage. So you will not be required to move. यहाँ पे वो इंटरफेस नहीं है तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, बट पेपर में आप दोनों साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलेंगे अभिषेक. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इन साउथ ईस्ट एशिया द ड्राइड होल प्लांट इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑल्दो there is no high quality clinical research to indicate such uses are effective. So very well done guys. Yet होता है फिर भी, पता है प्रिया, yet होता है फिर भी के सेंस में. जैसे मैं बोलता हूँ कि he is poor yet he never begs. ठीक है, कि हालांकि वो गरीब है फिर भी वो कभी भीख नहीं मांगता. तो yet होता है उस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन में कि फिर भी, ऐसा होने के बावजूद भी, फिर भी, राइट. लेकिन ऑल्दो का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि ऑल्दो वहाँ पे कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं हुआ है इस बारे में अभी तक. तो क्या कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में पूरे प्लांट को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल यूजेज में, लेकिन वाली जो सेंस होती है ना, लेकिन इस पर अभी तक कोई क्लिनिकल रिसर्च प्रूव नहीं हुई है. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग इन हिंदी, वी आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रिया. Abhishek was just asking, would we, would we need to switch in the screen like you are doing? So I told him, no, we are not doing that. Okay. चलो guys, let's move to the next question. Parajumbles. Parajumbles भी वो नहीं पुराने वाले, नए type के parajumbles. देखना एक बार. Below, a paragraph has been given in jumbled parts. These parts are not in proper sequence. ये sequence में नहीं है. These sentences are not in the sequence. Some words are highlighted and blanks are also there. कुछ words highlighted भी हैं, जैसे ये revised है, और कुछ blank भी दिए हुए हैं उन्होंने. तो some words are highlighted and blanks are also there. You are required to arrange these jumbled sentences in order to form a meaningful and coherent paragraph. Also the answer also answer the questions given below. So we have to first rearrange them in a logical sequence. Then there are one word which is bold, one which is I think again फिर हमें कोई error ढूंढना है शायद. नहीं, एरर नहीं ढूंढना, इसको रीअरेंज करना है शायद इस सेंटेंस को. एंड फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, हमें ब्लैंक का भी आंसर ढूंढना है. सो देयर आर 5 क्वेश्चंस लाइक दिस. सो रीअरेंज करना शुरू करेगा इस. पहले तो इस सेंटेंस को रीअरेंज करो, सेंटेंस नंबर टी को. विदाउट रीअरेंजिंग दिस यू विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर.
सो गाइस मैं नए नए टाइप के क्वेश्चंस लाया हूँ जैसे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन कैसे पैनिक नहीं करना है उनमें एंड हाउ टू सॉल्व देम थ्रू। तो फर्स्ट अगर आपको पूरे उसको रीअरेंज करना है तो आपको इस सेंटेंस को पहले आपस में रीशफल करना पड़ेगा इन पार्ट्स को। तो क्विकली गिव मी द रीअरेंजमेंट। क्या रीअरेंज रीशफलिंग होनी चाहिए इन पार्ट्स में? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द CMPs वोटिंग फॉर the first day of the session will, by counting of votes on July 21, polling booths in parliament followed. आई थिंक फॉलोड के बाद बाय आना चाहिए, तो ई के बाद डी। ये देखो फॉलोड बाय काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन जुलाई 21, तो ई के बाद ई के बाद डी है, ये क्लियरली हमें मिल गया इन द फर्स्ट सेशन। सो आई थिंक ये सही बन रहा है, फर्स्ट सी से शुरू होना चाहिए। द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन विल सी MPs वोटिंग फॉर द presidential elections in the polling booths in parliament followed by counting of votes on July 21. So I think the correct sequence here is, it should be this: the first day of the session will see, second will be B, will see MPs voting for the presidential elections. This should be third: presidential elections in the polling booths in parliament followed by, then it should be, this should be sentence part 4 and this should be part 5. ठीक है, चलो ये एक तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, राइट? अब now let's try to rearrange all the sentences. Furthermore, the president and the vice president are also said to be elected during the monsoon session. This cannot be the first sentence because it begins with a conjunction. Guys, वो ट्रिक पता है आपको रीअरेंजमेंट करने का कैसे करना होता है? सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, वो सेंटेंसेस ढूंढो। the first and the foremost trick to solve a rearrangement or a parajumble is always look for that first sentence. And how to look for the first sentence? Look for the sentences which have pronouns and conjunctions in them. So if a sentence begins with a conjunction, that shows it is previously connected with another sentence. So that cannot be the first sentence, right? And if there is a pronoun in the sentence, that also means that some word has been used before this. That is why we are using this pronoun. So that also cannot be the first sentence. So first look for the first sentence. In addition to 24 bills, a further 8 bills are already pending. So this cannot be the first sentence. 2 separate bills for constitution amendment to revise the list of scheduled castes and scheduled tribes for Chhattisgarh and Tamil Nadu are also listed for introduction. That means this cannot be the first sentence. During the session, the center is ready to announce 24 bills. Including the cantonment bill and the multi-state cooperative societies bill during the session. So इसका मतलब session की पहले बात आनी चाहिए. The first day of the session will see MPs voting for presidential elections in the polling booths in parliament, followed by counting of votes on July 21. And last, the central government is dash for the upcoming monsoon session of parliament, which is all set to commence on July 18th, Monday, and will conclude on August 12th. So I think the first sentence is sentence number, अरे आपने लोगों solve भी कर दिया वाओ. So the first sentence is sentence number U, right? Is dash. So I think something like the central government is ready for the upcoming budget या preparing for the upcoming, ऐसे कुछ होना चाहिए, वो देख लेंगे अभी, लेकिन एक आइडिया हमें लग गया. तो the central government is ready for the upcoming monsoon session of the parliament, which is all set to commence on July 18. Second क्या होना चाहिए? I think फिर ये first day वाली बात आनी चाहिए. फिर I think second sentence should be T. The first day of the session will see MPs voting for the presidential elections in the polling booths in the parliament, followed by counting of votes on July 21. Then फिर आई थिंक यही आना चाहिए. अच्छा, furthermore the president and the vice president are also set to be elected during the monsoon session. ठीक है, समझो. अब वो एडिशनल बात हो रही है, राइट? तो आई थिंक दिस कैन नॉट बी द सेकंड सेंटेंस, राइट? तो सेकंड आई थिंक क्या होना चाहिए? S. During the session, the center is ready to announce 24 bills, including the cantonment bill and the multi-state cooperative society bill. Then फिर आना चाहिए Q. In addition to 24 bills, a further 8 bills are already pending before both houses. I think that should be third, right? Then fourth should be 2 separate bills for constitution amendment to revise the list of scheduled castes and scheduled tribes for Chhattisgarh and Tamil Nadu are also listed for introduction. Then it should be further the president and the vice president are also set to be elected during the monsoon session, and then this should be last.
presidential elections in this, sorry, the first day of the session will see the MPs voting on the polling booths followed by counting of votes. तो सही सीक्वेंस क्या बनना चाहिए गाइस? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट शुड बी U, सेकंड शुड बी S, थर्ड शुड बी Q, फोर्थ शुड बी R, fifth should be P, and last should be T. Is that right, guys? US, Q, R, P, T. Q and R. See, in addition to 24 bills, तो आप यहाँ से हिंट ले सकते थे अभिषेक कि इसका मतलब 24 बिल्स की जो बात हुई है इससे पहले वाले सेंटेंस में हुई होगी, वो किस में थी? सेकंड वाले में, ड्यूरिंग द सेशन द सेंटर इज रेडी टू अनाउंस 24 बिल्स। ये कनेक्टिंग जो चेन होती है ना, ये हमें ढूंढनी होती है इसमें कि हाउ यू कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेस। सो ड्यूरिंग द सेशन द सेंटर इज रेडी टू अनाउंस 24 बिल्स इंक्लूडिंग द कैंटोनमेंट बिल एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल। सो 24 बिल्स की बात थी, फिर आएगा इसके बाद इन एडिशन टू 24 बिल्स, मतलब 24 बिल्स के साथ साथ और क्या होने वाला है? फर्दर 8 बिल्स आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द बोथ हाउसेस। फिर जब बिल की बात चल रही है, फिर आएगा फिर 2 सेपरेट बिल्स आर ऑल्सो लिस्टेड। ये देखो, जब ऑल्सो लिस्टेड है मतलब ये भी लगे हुए हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये बात आ गई, राइट? एंड देन यू लुक एट द अदर बात कि फर्दर मोर, और क्या उसने बोला, और क्या होने वाला है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होने वाला है। और फिर इलेक्शन की बात यहाँ थी कि उसमें क्या होगा, द फर्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन, the first day of the session will see the MPs voting for the presidential elections in the polling booths in parliament followed by counting of votes on July 21, right? So अब हम देखो सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स विल बी एक्ट फॉर ब्लैंक गिवन स्टेटमेंट यू। तो यहाँ पे क्या क्या फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डैश फॉर द अपकमिंग मॉनसून सेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गियरिंग फॉर, गियरिंग टू, गियरिंग ऑन या गियरिंग अप। यस गाइस, फटाफट से मुझे आंसर बताते चलिए। देखो, इसमें 3-4 मिनट एक बार इन्वेस्ट करनी पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको 5 मार्क्स मतलब सेट मिल जाते हैं इसमें, राइट? जैसे आपका रीजनिंग में वो होते हैं ना आपके जंब, जो क्या बोलते हैं उनको, पजल्स। पजल्स में इसी तरह से होता है, आपको हिंट दिए होते हैं, हिंट से आपको कनेक्ट करना होता है। यस गाइस, वेरी वेल डन। करेक्ट आंसर इज गियरिंग अप। टू गियर अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तैयारी करना। सो यहाँ पे सही क्या आएगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गियरिंग अप फॉर द, वही ना, वही मैं कह रहा था, इज गेटिंग रेडी या गेटिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर या गियरिंग अप, वही वाली बात आ गई। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विच इज ऑल सेट टू कमेंस ऑन July 18 Monday and will conclude on August 12. So option D is the right option, gearing up. Next, rearrange the statement T in a meaningful order. अच्छा, इसको हमने rearrange कर लिया था। CBAED, कहाँ पे है CBAED? Yes guys, so you could clearly locate your answer. The correct answer was option number C, right? Next question. Question number 13. Which of the following statements comes between S and Q after rearrangement? S and Q के बीच में, S और Q के बीच में कौन सी स्टेटमेंट आ रही है? S नंबर 2 है और Q नंबर 3 है। यार ऐसा तो नहीं होना। अच्छा, ये 2 है। क्या क्वेश्चन था, एक मिनट। Which of the following statements comes between S and Q after rearrangement ना? तो S नंबर 2 है और Q नंबर 3 है। अब देख लो भाई, तो आई थिंक फिर हमने रीअरेंजमेंट यहाँ पे, ये जो ये था ना, ये फिर 3 होना चाहिए था और ये होना चाहिए था 4। आई थिंक ये बन रहा है फिर इसका मतलब। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है इसमें कि पहले उसने क्या बोला? ड्यूरिंग द सेशन द सेंटर इज रेडी टू अनाउंस 24 बिल्स इंक्लूडिंग द कैंटोनमेंट बिल एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल। 2 separate bills for constitution amendment to revise the list of scheduled caste and scheduled tribe are also listed for introduction. In addition to 24 bills, a further 8 bills are already pending before both houses. So I think यहाँ पे sequence, यहाँ पे Q, S और Q के बीच में पहले R आना चाहिए था। So the correct sequence would be now guys, U, S, R, Q, P, T. अभी देखो ऐसे होता है हिट एंड ट्रायल जब आपको करना पड़ता है, ठीक है? So the statement which should fall between 2 and 4 is sentence R. Right. Then find the odd word with the context of the word highlighted in the statement R. Odd word. Find the odd word with the context of the word. अच्छा, ये जो word दिया हुआ है, बोल्ड करके दिया हुआ है, revise कहाँ पे दिया हुआ था? ये रहा। 2 separate bills for constitution amendment to revise the list of
SC, ST for Chhattisgarh and Tamil Nadu are also listed. So 2 separate bills for constitution amendment to revise the list. So revise के लिए the odd word हमें ढूंढना है. So revise में उसने ऑप्शन दिए amend, alter, fix, change और edit. Not compulsorily का वेरी, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है. तो इसमें आप देखो पिछले 2 सालों से तो नहीं आया है. So Kaveri Vishwas, for the last 2 years, parajumbles are not asked, but who knows इस साल डाल दे वो. तो वो कंफ्यूज तो करने की कोशिश करता ही करता है किसी ना किसी तरह से. Yes guys, revise, amend, alter, fix, change और edit. कौन सा वर्ड है जो इनमें से रिवाइज में से ऑड लग रहा है आपको? The right answer here is fix. देखो guys, revise means to change. So amend होता है change करना, alter होता है change करना, change दिया ही हुआ है, edit भी होता है change करना. Fix का मतलब change करना नहीं होता, fix का मतलब होता है ठीक करना. To fix something मतलब to correct something, rectify something. Rectify और revise same चीज नहीं होती. ठीक है? So that was the odd one out. लेकिन काफी close थे options. ठीक है? Good. Which of the following statements is the fifth statement after the rearrangement? Fifth statement USRQP. So I think fifth statement हमारी क्या बन रही है यहाँ पे? P. And which of the following statements is the conclusion statement after rearrangement? I think T was the last one, if I'm not wrong. Right. So T is the last statement. ये रहे आपके answers. ठीक है? So for answer for question number 15, A is the right answer. For question 16, E is the right answer. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. अब इसमें हमें 4 क्वेश्चन है. तो देखना, द क्वेश्चंस गिवन बिलो हैव सेंटेंसेस which have been divided into 5 parts which are not in their proper order, and one of these parts also has a blank in it. You are required to rearrange the given parts and choose the option that carries the correct sequence and the word that fills the blank. अब इसमें आपको क्या करना है गाइस? देखो उसने एक सेंटेंस को पहले 5 पार्ट में ब्रेक किया है, ABCDE, और उसको जंबल कर दिया है. तो एक तो हमें जैसे अभी हमने पीछे किया था, इनको रीशफल करना है, और एक ब्लैंक भी दिया हुआ है साथ में, पहले इसको फिल करना है. तो गाइज अगर आप ये ब्लैंक सही अगर आप ढूंढ लेते हो ना, तो आपके आई थिंक ऑप्शंस बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं. एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, फिर बाकी अगले 3 आप करके दिखाना मुझको अपने आप. ठीक है, फेयर इनफ. तो दैट आर मेड विद डैश एंड section 295 punishes only insults to religion. The Supreme Court has laid down that unwittingly or without malice is not an offense. Malicious intention and anything said. So I think किससे शुरू होना चाहिए? C से शुरू होना चाहिए. अगर आपको वर्ड क्लियरली नहीं मिल रहा है, दैट आर मेड विद डैश एंड, सो आई थिंक फिर हम सीक्वेंस भी ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट आई थिंक सी लग रहा है सबको. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट. सी से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? तो आई थिंक उसके अलावा जितने भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचे अपने पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई. सो डेलिबरेट या अनइंटेंशनल. ठीक है, अब देखते हैं. तो आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट, जो मुझे इसमें सीक्वेंस लग रहा है, सी इज द फर्स्ट पार्ट. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट section 295A punishes only insults to religion, insults to religion. हाँ, तो the Supreme Court has laid down that that the section 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention या unintentional. So it only punishes की बात कर रहा है, तो I think क्या आना चाहिए? Deliberate. So the Supreme Court, अब यहाँ पे इतना करके आपको आपका आंसर यहीं तक मिल जाएगा, बट एक बार फिर भी कंफर्म करना पूरा पढ़ के. ठीक है, तो क्या सीक्वेंस मिल रहा है? CBA, राइट, बिल्कुल सही आ रहा है. द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट सेक्शन 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention and anything said. सो यहाँ पे ए पार्ट हो गया हमारा, पार्ट नंबर 3, ये हो गया पार्ट नंबर 4. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट सेक्शन 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention, and anything said unwittingly or without malice is not an offense. So I think C, B, A, E and D. So option B is your right answer. Very well done guys. तो आपको ऐसे इनको रीशफल करके और अपने ऑप्शंस के साथ इनको पूरा सॉर्ट आउट करना होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए गाइस. अब मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, अब आपको इसको रीअरेंज करना है और मुझे आंसर बताना है. ठीक है,
They could have created a small like Handa Boda or Jatayu, and they offer her a Jubilee Sandesh film where the queen meets some dash Bengali comic character. Okay, try to solve it, guys, quickly. Yes, guys, मुझे तो आंसर मिल गया है. Mhm. Yes, guys, should I tell you the answer? नहीं गाइस, कुछ बच्चों ने गलती कर दिया. द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी. क्या बन रहा था? दे कुड हैव क्रिएटेड अ स्मॉल, देन सेकंड शुड बी डी. They could have created a small film where the queen meets some beloved Bengali character. So that was the right answer. So they could have created a small film where the queen meets some beloved Bengali comic character like Handa Bhoda or Jatayu, and they offer her a Jubilee Sandesh. So they could have created a small film where the queen meets some beloved Bengali comic character like Handa Boda or Jatayu, and they offer her a Jubilee Sandesh. So that was the right sequence: A, D, E, B and C. And the blank to be filled was beloved. वेरी वेल डन गाइस, कीप इट अप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला करके दिखाओ, देखते हैं ये कौन करता है. और सही होना चाहिए. टेक योर टाइम. कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पे कि जल्दी आंसर करना. तो टेक योर टाइम, बट सही आंसर करके दिखाना. They had been dashed through face-to-face teaching, made almost all students stay back at and learning programs in their schools, school closures during the pandemic in our country, home foregoing the learning that. Yes, guys. पहला सेंटेंस ढूंढ लो, उससे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. वेरी गुड जयलक्ष्मी. वेरी गुड रचना. वेरी गुड अमित. वेरी गुड प्रिया. Yes, guys, quickly give me your answers. Very good, Abhishek. Very good, Nilesh. Very good. Let's unite. Very good, Sarima. Very good, Sarkari Naukri. Very good, Sorish. So, guys, the right answer is option number A. The first part was school closures during the pandemic in our country. Then, second was B, made almost all students stay back at. Then, third should be E, stay back at home, foregoing the learning that they had been dashed through face to face teaching. That should be fourth. And last should be C, face to face teaching and learning programs in their schools. So that is the right sequence, DBEAC, and the right word is acquiring. So अब एक बार पूरा ही करके ना इसको पूरा complete पढ़ लिया करो. School closures during the pandemic in our country made almost all students stay back at home, foregoing the learning that they had been acquiring through face-to-face teaching and learning programs in their schools. So A was the correct answer. Very well done, guys. Very good, Saloni, Ritika, Ria. Keep it up, guys. चलो guys, next question. फटाफट से मुझे करके बताना ये वाला आपने. भाई इजी नहीं होगा तो ध्यान रखना. कंफ्यूजिंग है तो करके बताओ फटाफट से मुझे. दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस मैराथन सेशन अभिषेक. ये एक सेशन से पूरी इंग्लिश कैसे करोगे यार? एक लेक्चर से अगर आरबी ये नाबार्ड जैसे एग्जाम क्लियर होते हैं अभिषेक, तो फिर तो क्या ही बात थी. नहीं, दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस सेशन. यस गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर?
क्या दैट वुड बी सफिशिएंट अभिषेक? बट दिस लेक्चर इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ये तो एग्जाम से जैसे थोड़े टाइम पहले बच्चों को एक ना सिमुलेशन में डालना कि रैंडमली क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, तो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ लेक्चर, राइट? सो अगर आप गोल्ड पैकेज वाला करते हो तो आई थिंक फिर उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन आई थिंक यू वुड बी देयर वुड बी इनफ टेस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस देयर। तो प्रैक्टिस से होगा, बस हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, लाइव प्रैक्टिस करके देख रहे हैं जस्ट अभिषेक। वेरी वेल डन गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द फर्स्ट पार्ट इज माइनर्स इन क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड्स ऑफ कैनेडा, राइट? हाँ, तो बी होना चाहिए सेकंड। तो माइनर्स इन क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड्स ऑफ कैनेडा's फार नॉर्थ हैव made a rare discovery. I think the D should be the next part. Yes, A B EBD. So they have made a rare discovery, digging up. तो फिर आना चाहिए digging up the mummified remains of, that should be remains of, or that should be part fourth, of a near complete baby woolly mammoth. So correct option was option number D. So miners in Klondike goldfields of Canada's far north have made a rare discovery, digging up the mummified remains of a near complete baby woolly mammoth. So if you are given such questions for rearrangement of sentences, this practice will definitely help you. चलो guys, next type of questions, फिर से rearrangement पे questions हैं। अब इसमें क्या दिया है, ध्यान से सुनना guys. In each of the following questions, a sentence has been divided into 5 parts. एक sentence को 5 part में divide किया है उन्होंने, and these parts are given in jumbled form. Out of these parts, one part is fixed, which has been highlighted in bold. You are required to rearrange the remaining parts in order to make the sentence complete. तो उसने क्या कहा, देखो एक sentence को 5 part में divide किया है, ये जो bold वाला part है ना, ये अपनी जगह पे fix है, क्यू अपनी जगह से नहीं लेगा, मतलब क्यू अपनी सेकंड पोजीशन पे फिक्स्ड है। अब बाकी 4 को आपको रीअरेंज करना है और बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो जैसे क्यू सेकंड पे फिक्स हो गया, अब बाकी को देखो आपको क्या सही सीक्वेंस बनना चाहिए इसमें। Yes guys, what is the right answer? Very well done. The correct answer is option number D. The first is sentence R. Keeping pace with China, the Indian Army is giving a boost to its communication infrastructure. Then it should be, so keeping pace with China, the Indian Army is giving boost to its communication infrastructure in remote high altitude areas looking to have 4G and 5G network even at heights up to 18,000 feet. So D is the correct answer. Right? तो उसको इस तरह से rearrange करना है, and let's practice some more questions like this. तो इसमें sentence S नंबर 4 पे फिक्स है, ठीक है? आपको बाकी सारे sentences को rearrange करना है. Yes guys, go for it. Good work. Let's unite. Yes guys. Thank you for the kind words, dear. The first sentence should be sentence number T, right? The Supreme Court has dismissed. Then it should be P, a batch of petitions by private tour operators. Then it should be Q, seeking exemption from GST for the Hajj and Umrah services offered by them to pilgrims. So T, P, Q, S, R. So I think the right option is option number E. Very well done guys. Keep it up. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली फटाफट से रीअरेंज करके बता दो। इसमें सेंटेंस नंबर 5 फिक्स्ड है, आपको पहले 4 को रीअरेंज करना है।
Very good, Alishba. Very good, Nilesh. Very good, Priya. Very good, Jayalakshmi. Anselin, very good. Kavisha, Anselin, ये तो अपना वो जो हमने कोई रिवीजन बैच में जो मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया था वही वाले क्वेश्चन है. वेरी वेल डन गाइस. So the correct answer is the Maharashtra Anti-Terrorism Squad has arrested a 30-year-old man with alleged links to terror outfit Babbar Khalsa from a jail in Punjab. So option A is the right answer here. Keep it up guys. Next question. फटाफट से करके बता दो इसमें सेंटेंस नंबर 3 फिक्स्ड है. वेरी गुड नीलेश. वेरी वेल डन गाइस. वेरी गुड Ritika. Very good Amit. Rachna, Saloni, Ria, Nidhi, Shivani, Rebel Gaming. You are also here. Gautam, Sarima, Let's Unite, Nidhi, कावेरी. निधि गलत हो गया ये ए वाला. BBBM, ये कौन सा ऑप्शन है यार. चलो द फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक शुड बी इंडिया इन्फॉर्म्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट इट विल. Then I think it should be T. It will take steps in accordance with law under the Public Premises Act against its employees to whom it has issued eviction notice to vacate their official quarters at Kalina. So I think the correct sequence was QTRSP. तो आई थिंक PS होना चाहिए इसमें तो C होना चाहिए या B होना चाहिए गाइस. व्हाट डू यू से. आप कह रहे हो C होना चाहिए. QTRSP. India informed the Bombay High Court that it will take steps in accordance with law under the Public Premises Act against its employees to vacate their official quarters at Kalina to whom it has issued eviction notice. ये कह रहे हो आप. Against its employees to whom. कनेक्शन यहाँ पे employees को आएगा पहले तो PS बनेगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B नॉट C. ये देखोगे थोड़ा जल्दीबाजी में ना ये गलत हो जाता है. ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करेंगे अगर इतनी जल्दीबाजी करेंगे तो. सो एम्प्लॉइज टू वैकेट नहीं. अब इसमें फिर अगर मैं ये बोलता हूँ तो अंडर द प्रेमिसेस एक्ट अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉइज टू वैकेट देयर ऑफिशियल क्वार्टर्स एट कलीना टू whom इट हैज इशूड. हु टू whom कलीना को टू whom थोड़ी बोल सकते हैं. एम्प्लॉय को टू whom बोलेंगे ना. वेरी गुड सॉरी माँ. सो बी वॉज द राइट ऑप्शन है. तो थोड़ा सा पूरा एक बार सॉल्व कर लिया करो इसको. जल्दीबाजी इतना जल्दी भी नहीं किया करो. चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. सेंटेंस 1 इज फिक्स्ड. You have to find the rest. Quickly guys, go for it. आई नो कावेरी. वो वही तो प्रेशर प्रेशर का ही तो गेम है सारा. ही है द होल एग्जाम इज अबाउट प्रेशर. कि आप वो प्रेशर कौन बच्चा इतना प्रैक्टिस करके आया है कि वो ये प्रेशर को हैंडल कर सकता है. दैट इज द होल टेस्ट. नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है करने में. वेरी वेल डन गाइस. पूरा किया आपकी बार.
देखते हैं. द बॉम्बे हाई कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाई राइज बिल्डिंग्स around the Mumbai airport, discuss the recently released movie Runway 34 to understand how the air traffic really works. So it should be PRT then QS. वेरी वेल डन गाइस, आपकी बार सबने सही किया है. गलती हो जाए कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करना सीखो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, चलो आखिरी के 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बार आप मुझे अपना वो बताना, फाइनल स्कोर बताना किसका कितना स्कोर रहा. एंड देन we shall be then we will see ke what should be the right strategy when you are appearing for the exam. ये वाला देखो, द बॉम्बे हाई कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन. बॉम्बे हाई कोर्ट किसके पिटिशन किसके रिगार्डिंग हियर करेगी, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी. तो वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग रिलीज्ड मूवी रनवे 34 टू अंडरस्टैंड, नहीं, टू द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाई राइज बिल्डिंग. सो यहीं से लिंक बन रहा था कि द बॉम्बे हाई कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो बीच में रुकावटें आते हैं ड्यू टू हाई राइज बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, तो द बॉम्बे हाई कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाई राइज बिल्डिंग अराउंड द मुंबई एयरपोर्ट डिस्कस द रिसेंटली रिलीज्ड मूवी रनवे 34, जो रनवे 34 में जैसे उन्होंने बताया, टू अंडरस्टैंड हाउ द एयर ट्रैफिक रियली वर्क्स. तो वो मूवी का जिक्र भी हुआ उसमें, right? See, 11, 12 is the cutoff for English, Gotham. The paper is easy, but the only catch here is the paper would be lengthy. So the cutoff goes up to 11, 11.25 out of 30. So 18 to 20 would be a safe score. So if you attempt around 22, 23 questions and if you score around 18 to 20 marks, that would be a good attempt for English. कोई बात नहीं, होती रहती हैं गलतियाँ, गलतियों से सीखोगे आप. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सुनो क्या दिया. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू सेंटेंसेस आर गिवन बिलो फॉलोड बाय थ्री ऑप्शंस. यू आर रिक्वायर्ड टू जॉइन these two sentences by using the three options without changing the actual meaning. So we are required to join these two sentences by using the three options without changing the actual meaning. So हमें क्या ढूंढना है, दो सेंटेंसेस दिए हैं और ये तीन हमें वो दिए कंजंक्शन दिए हुए हैं. तो हमें ढूंढना है कि इनमें से किन को यूज करके हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग. तो एक बार सेंटेंसेस पढ़ते हैं. द ऑपोजिशन साइड इन द लोकसभा ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस. The opposition side in the Lok Sabha during the debate on motion of thanks on president's address. ठीक है, एक तो ये सेंटेंस है. राहुल गांधी demanded an apology from Amit Shah while narrating how a political leader from Manipur got insulted. So demanding an apology से हम कर सकते हैं. Demanding an apology from Amit Shah. राहुल गांधी कैसे बना सकते हैं? Yes guys. While narrating how a political leader. Yeah, speaking first from the opposition side, Rahul Gandhi demanded an apology from Amit Shah. Yes, guys, which can be used to connect both the sentences. I think the correct option is we can only connect both the sentences by using option 3. देखो connect करना है. The opposition side in the Lok Sabha during the debate on the motion of thanks on president's address. Speaking first from the opposition side, Rahul Gandhi demanded an apology from Amit Shah while narrating how a political leader from Manipur got hurt. अब इसमें ये कर सकते हैं कि ऑपोजिशन साइड इन द लोकसभा ड्यूरिंग द डिबेट ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेजेंट एड्रेस डिमांडिंग एन अपॉलजी, राहुल गांधी डिमांडेड एन अपॉलजी, रिपीट हो जाएगा. वाइल नरेटिंग हाउ पॉलिटिकल, फिर वही रिपीट हो जाएगा. तो द ओनली ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. दिस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द सेंटेंसेस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. चलो एक हमने करके देख लिया, अब ये वाला आपको करके बताना है. दो सेंटेंसेस दिए हैं. विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द सेंटेंसेस. केस लोड इन द मेट्रोपोलिस रोज टू 10,48,521 while death toll reached 16,640. The Bryn Mumbai Municipal Corporation said in a release. अच्छा, इसमें याद रखना गाइस,
caseload in the metropolis rose to 10.5 lakh while death toll reached 16,640. The Bryn Mumbai Municipal Corporation said in a release. No, Ritika, we can't change the structure. I mean, structure as in, I mean, we can change the words, but the meaning should be the same. That is the point. It should not give any other meaning. जैसे पिछले वाले में वो क्या कह रहा था कि ऑपोजिशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे उसमें क्या था, ऑपोजिशन साइड लोकसभा के दौरान जब मोशन ऑफ थैंक्स पे डिबेट हो रही थी, तो राहुल गांधी ने अमित शाह से माफी मांगी, ये कहते हुए या ये बताते हुए कि कैसे एक पॉलिटिकल मणिपुर के एक पॉलिटिकल लीडर को चोट लगी थी. राइट, तो ये डिबेट में ये बताते हुए उन्होंने माफी मांगी. तो ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए वहां पे. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. सिमिलरली जैसे वो क्या कह रहे हैं कि केस लोड के मेट्रोपोलिस मतलब मुंबई में केस लोड 10.5 लाख तक पहुंच गया रफली, जबकि डेथ टोल 16,500 पे पहुंचा हुआ है. तो ये ब्रिन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये एक रिलीज में, मतलब डेथ क्या बोलते हैं, डेथ कह रहा हूँ, वो मीडिया रिलीज में ये बात कही है. तो किस से हम जोड़ सकते थे दोनों को? द केस लोड इन द मेट्रोपोलिस रोज टू while the death reached this. ठीक है. नहीं, हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस यूजिंग दीज थ्री ऑप्शंस विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग. सो आई थिंक इसमें भी वही आंसर था गाइस. Only this can be used. Okay, case load in Mumbai rose to this while death toll reached to this. This has been said by BMC. As the death toll reached 16,640, while की जगह as लगा दोगे तो क्या आप इसको कनेक्ट कर पाओगे? As the death toll reached 1640, the Bryn Mumbai नहीं, as से फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो आई थिंक ओनली 3 इज द राइट ऑप्शन. ई इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन सॉरी ये है, यू हैव टू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड यू हैव टू सी के अगर यहाँ पे मैं ये देखो, हमें मतलब बेसिकली इसको ये मान के चलो कि बी पार्ट को आपको यहाँ पे जोड़ना है. इसके बाद कॉन्टिन्यूटी में एक सेंटेंस बनाना है दोनों को जोड़ के. तो अब बेसिकली कॉन्टिन्यूटी में जब आपने दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, तो इन तीनों में से कौन सी ओपनिंग है जो दोनों सेंटेंसेस को सही तरह से कनेक्ट कर पाएगी जब हम एक बना देंगे इसको? तो पहले उसने ऑप्शन दिया कि एज द डेथ टोल. अगर हम इसको वाइल द डेथ टोल को हम एज द डेथ टोल बना दें और बाकी ये यूं कॉन्टिन्यूटी में लिखें, तो क्या सेंटेंस ठीक बन पाएगा? सिमिलरली अगर हम यहाँ से शुरू करें, द केस लोड इन द मेट्रोपोलिस रोज टू दिस वाइल डेथ टोल रीच दिस, द ब्रिन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेड इन रिलीज. ठीक है. क्या इससे क्या बीच में इसको हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? बीच में तो इसको कहीं नहीं ऐड कर सकते. राइट. ठीक है. ये अगर करते हैं सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है. सो ओनली ऑप्शन 3 वाज द राइट आंसर. ये ऐसे इसको करना बेसिकली गाइस, करना क्या है, इनमें हमें दोनों सेंटेंसेस को 1+1 करके एक सेंटेंस बनाना है. राइट. तो हमें ये देखना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो अगर बीच में डाली जाए, राइट, तो मतलब इसकी ओपनिंग सेकंड सेंटेंस की ओपनिंग में या बीच में डाली जाए, तो ये दोनों सेंटेंस एक बन सकते हैं विदाउट चेंजिंग द टोन, कॉन्टेक्स्ट और द रेलेवेंस ऑफ द सेंटेंस. ये करना होता है इसमें. चलो एक बार नेक्स्ट वाला करके देखना गाइस, इसमें पता लगेगा आपको. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 3,131 करोड़. Second, the manufacture and supply of Conquer's M anti-tank guided missile. अब उसने बोल रहा है कि अगर हम इसको एक सेंटेंस में बनाएं तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? हम क्या बोल सकते हैं, BDL एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना करोड़ फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. क्या ये बीच में कनेक्शन बन सकता है? हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड, कैसे शुरू हो सकता है, एंड द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कौन नहीं, द इंडियन आर्मी विद भारत डायनेमिक्स. द इंडियन आर्मी विद भारत डायनेमिक्स का इससे बना सकता है?
किस गाइस, क्या लग रहा है सही आंसर? देखो फर्स्ट तो ऑब्वियसली कलेक्ट है, फर्स्ट से तो हम कर ही सकते हैं कनेक्ट, ये तो क्लियर हो रहा है। जैसे बीडीएल एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना करोड़ फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये ए से तो बिल्कुल सही कनेक्ट हो रहा है। अब ऑप्शंस में हमें ये देखना था कि सेकंड और थर्ड में से क्या दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक कनेक्ट कर सकता है इनको। तो बीडीएल वाला कर सकता है कि भारत डायनेमिक्स एंड डायनेमिक्स लिमिटेड एंड द इंडियन आर्मी द मैन्युफैक्चरर ऑफ, कैसे कर सकते हैं इसको कनेक्ट? क्या इससे कनेक्ट हो रहा है? नहीं। लेकिन द इंडियन आर्मी विद भारत डायनेमिक्स, ठीक है, फिर यहाँ से तो हम जोड़ सकते हैं ना कि द इंडियन आर्मी विद भारत डायनेमिक्स द मैन्युफैक्चर ऑफ सप्लाई, नहीं ऐसे नहीं, द इंडियन आर्मी विद भारत डायनेमिक्स हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना करोड़। Two sentences are given below followed by three options. You are required to join these two sentences by using three options without changing the actual meaning. Using the three options, अच्छा इनको तीनों को यूज करके, अच्छा अब ऐसा तो नहीं कह रहा कि इनको तीनों फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ मिसाइल्स भारत लिमिटेड। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है, इसमें वन एंड टू आंसर है गाइस इसमें। समझाता हूँ आपको कैसे वो क्या बोल रहा है, बेसिकली सुनना आप ध्यान से। अब मुझे मुझे भी आप समझ आ रहे हो क्लियरली क्या बोल रहे हो। देखो नॉर्मली क्या सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द थ्री ऑप्शंस, बाय यूजिंग द थ्री ऑप्शंस विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग। अब उसमें वो मैं सोच रहा था कि इनमें से उनके दोनों के बीच में कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा वो डाल के कनेक्ट करना है, बट वो आई थिंक वो पता है क्या कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द थ्री ऑप्शंस विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग। मतलब ये तीनों ऑप्शंस को यूज करके क्या हम किसी तरह से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से किसी दो या किसी तीन या किसी किसी भी ऑप्शन को। जैसे वो कह रहे हैं फॉर द सप्लाई एंड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एंड एंटी गाइडेड मिसाइल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना। तो वन एंड टू को यूज करके हम ये सेंटेंस यूं का यूं क्रिएट कर सकते हैं। शुरू किससे करके, शुरू ऐसे करके फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज ऐसे। तो वन एंड टू को यूज करके हम ये सेंटेंस दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन थर्ड वाले को क्यों एलिमिनेट किया मैंने, अब यहाँ पे देखो एंड की जगह अगर विद होगा ना, विद का मतलब क्या हुआ है, उसके साथ, तो मतलब वन प्लस वन जो दो सब्जेक्ट नहीं बने, तो यहाँ पे इसका मतलब इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किसके साथ किया है। अगर अगर हमें उसके साथ साइन किया है तो हमें यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, विद नहीं लगा सकते फिर हम। हाँ मैं भी वही देख रहा था रितिका, वो कैसे क्या बोल रहा है, मेरे को भी समझ आया कि नहीं करना बेसिकली क्या है, इन तीनों में से किसी दो या किसी तीनों को यूज करके क्या हम इस सेंटेंस को रिक्रिएट कर सकते हैं एक सेंटेंस में बेसिकली। सो वी आर रिक्वायर्ड टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द थ्री ऑप्शंस, इन तीनों में से कोई भी तीनों ऑप्शन। तो ये ऐसे बन सकता है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ, यहाँ से किया शुरू, फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एम एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड द इंडियन आर्मी हैव साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज इतना। ऐसे हम बना सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन विद करके नहीं बना सकते। लेकिन इससे क्या आता है, फिर हमने पिछले क्वेश्चन हमने इसका मतलब गलत तरह से किया है, तो एक बार इनको ट्राई करते हैं दोबारा से। अब इनका कॉन्टेक्स्ट सही समझ आ गया। अब एक बार देखना गाइस, अपने तीनों को ऑप्शन बनाना है हमें। हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते थे, डिमांडिंग एन अपॉलॉजी, स्पीकिंग फर्स्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड, राहुल गांधी डिमांडेड एन अपॉलॉजी व्हाइल नरेटिंग हाउ the opposition side in the Lok Sabha during the debate on Monsoon and thanks on President's address. Demanding an apology. Rahul. तो आई थिंक इसमें ऑप्शन पता है क्या था गाइस,
इसमें भी ऑप्शन बन रहा था स्पीकिंग फ्रॉम द फर्स्ट साइड डिमांडिंग एन अपॉलजी। राहुल गांधी डिमांडेड एन अपॉलजी। So demanding an apology, Rahul, while narrating how a political leader राहुल गांधी डिमांडेड अपॉलजी फ्रॉम अमित शाह। तो आई थिंक इसमें देखो बचता वही है, इसमें भी ओनली 3 बनता है, क्योंकि इसमें आप गाइस कौन से, अब दोबारा देखना, आपको समझ आ रहा है क्या करना है। तीनों ऑप्शंस में से आप चाहे तीनों को यूज कर लो, चाहे किसी दो को यूज कर लो, किसी एक को यूज कर लो। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन है जिनको हम यूज करके कनेक्ट करके हम बेसिकली एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम स्पीकिंग फर्स्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड, ये तो बिल्कुल सही था। स्पीकिंग फर्स्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड द लोकसभा ड्यूरिंग द डिबेट ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब यहाँ पे डिमांडिंग एन अपॉलजी फ्रॉम अमित शाह, अगर हम ऐसे शुरू करते हैं, फिर राहुल गांधी मिस हो जाएगा। अगर हम शुरू करते हैं वाइल नरेटिंग हाउ पॉलिटिकल लीडर गॉट हर्ट, राहुल गांधी डिमांडेड एन अपॉलजी फ्रॉम अमित शाह, ये हो सकता था। लेकिन वाइल नरेटिंग, अब इसके बाद फिर राहुल गांधी को बाद में डालना पूरे सेंटेंस के साथ, वो ऑप्शन में नहीं बन रहा। 2 और 3 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ओनली ऑप्शन 3 विल वर्क है। ठीक है, इसमें देखना एक बार, ये वाला दोबारा से करके देखते हैं एक बार गाइस। अब आपको समझ आ गया क्या करना है। तीनों में से कोई 2 ऑप्शन यूज करना है आपने, या तीनों यूज करना है आपने टू कनेक्ट द सेंटेंसेस बेसिकली। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा करके देख रहे हैं इसको। द केस लोड इन मेट्रोपोलिस रोज टू, the case load in metropolis rose to इतना, while death toll reached इतना, as the death toll reached। ठीक है, इसमें आप गाइस देखो, ये तो हम यूज कर सकते थे, हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, द केस लोड इन द मेट्रोपोलिस रोज टू 10,48,521 as the death toll reached 16,640, the BMC said in a release। हम थर्ड वाले को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, द BMC said in a release द केस लोड इन द मेट्रोपोलिस रोज टू। तो इससे शुरू करके फिर हम करेक्ट कैसे करेंगे उसको। अगर हम यहाँ से सेंटेंस शुरू कर देते हैं, मान लो द BMC कॉरपोरेशन सेड इन अ रिलीज, फिर इन्वर्टेड कॉमास दैट, वो नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड को एलिमिनेट करते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड को यूज करके सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। कैसे? द केस लोड, अब देखो केस लोड से पहले द नहीं है यहाँ पे, तो उसने सेंटेंस बनाया द केस लोड इन मेट्रोपोलिस रोज टू 10.5 lakh as the death toll reached 16,640। फिर द BMC कॉर्पोरेशन सडनली, सो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन डी। एंड देन ये वाला हमने करके देखा कि कैसे हम दो, कौन से दो को हम यूज करना है। अच्छा, अब भी मुझे अब समझ आया, मुझे लगा पहले वो ये कह रहा है कि इनको बस दोनों सेंटेंसेस के बीच में डालना है, क्योंकि उसने सिर्फ ये लिखा था ना, यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दीज 2 सेंटेंसेस, तो मुझे लगा इनको जोड़ना है सिर्फ किसी से। लेकिन अब समझ आ रहा है कि जोड़ना नहीं, इसमें बेसिकली तीनों ऑप्शंस में से किसी को यूज करके और फिर आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे हम एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। इंस्ट्रक्शंस भाई बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी। चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करके देखना गाइस। चलो, अब हम सही करके करेंगे इसमें। अब देखना है आपने कि इन तीनों में से कौन से दो पार्ट्स को हम यूज करके, ठीक है, एक को, दो को, या दो से ज्यादा अगर हैं तो किन को यूज करके हम ये सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ चादर ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। So Modi, Prime Minister Modi presented a chadar to Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi. A second है, chadar will be offered at Ajmer Sharif Dargah on the 810th anniversary of Khwaja Moinuddin Chishti. So while presenting a chadar to,
यस गाइस, कैसे बन सकता है? वेरी गुड प्रिया। यस, ऐसे बन सकता है। ऑन द 810th यूनिवर्सरी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी presented a चादर टू minority affairs minister मुख्तार अब्बास नकवी, एंड द चादर विल बी ऑफर्ड एट अजमेर शरीफ दरगाह। दैट्स इट, ऐसे बन सकता है। सो आई थिंक वाइल प्रेजेंटिंग अ चादर टू, या इससे भी बन सकता है, वाइल प्रेजेंटिंग अ चादर टू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, द प्राइम मिनिस्टर said, or on the 810th anniversary of Khwaja Moinuddin Chishti, चादर विल बी ऑफर्ड एट अजमेर। तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आई थिंक 1 and 2 आर द राइट कनेक्टिंग वर्ड्स हियर। ठीक है, क्या सिर्फ एक से बना सकते हैं या दो से कर सकते हैं? आप द से स्टार्ट कर सकते हैं। यस, द। अब देखो, अगर आप फ्रेश सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो द से करना होता है, लेट्स यूनाइट। अगर देखो, हमें खुद से तो कुछ करना नहीं है, वैसे हमें तो ऑप्शन चूज करना है। चलो गाइज, लास्ट क्वेश्चन ये वाला बताओ एक बार, इनमें से कौन से ऑप्शन है जिनको हम यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं? The Delhi police opposed the bail application of former GNU student Umar Khalid and 6 others before a court. Police alleged that they conspired to incite violence and planned an attack on police officials during 2020 riots in the national capital. आपका ऑप्शन है alleging that former GNU student Umar Khalid, the Delhi police opposed during 2020 riots in the national capital. Alleging से शुरू हो सकता है, alleging that former JNU student Umar Khalid and 6 others alleged to मतलब conspired to incite violence, alleging that former JNU student Umar Khalid and 6 others before a court, uh, that the Delhi police opposed the bail, saying they conspired to incite violence, लेकिन during 2020 riots in the national capital, ये इससे शुरू नहीं हो सकता आई थिंक कहीं से भी सेंटेंस। तो आई थिंक 1 and 2 आर अगेन द सेम ऑप्शन। व्हाट डू यू से गाइस? डी, यस। So alleging that former GNU student Umar Khalid and 6 others before a court uh, incited violence and planned an attack on police officials during 2020 riots, the Delhi police opposed the bail application of former, मतलब application इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 2020 during 2020 riots in the national capital, the Delhi police opposed भी नहीं बोल सकते, या पुलिस alleged भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वहां से नहीं बन सकता, तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलो गाइस, फटाफट से बता दो मुझे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत हुए, आउट ऑफ 30 कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद अनदर 30 क्वेश्चंस टुडे। यस गाइस, आर यू कीपिंग ट्रैक ऑफ योर स्कोर? कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं? चलो गाइस, तो बिफोर वी बिगिन, इतना आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ना एक सीक्वेंस टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, या सीक्वेंस टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेसिकली। अब गाइस, एक चीज याद रखना, मैं बहुत बार ये चीज रिपीट कर चुका हूँ। हैव यू गाइस ऑब्जर्व दिस के 99% ऑफ द टाइम्स जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके इंग्लिश सेक्शन में, वो 99% ऑफ द टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। एम आई राइट? तो गाइज, आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है। एम आई राइट? ना आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों आता है और कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आता? वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड रचना, कीप इट अप। यस गाइज, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि why do they always put reading comprehension right at the beginning of the paper?
वेरी गुड. लेंदी क्वेश्चंस फर्स्ट, बट व्हाई डू दे डू दैट रितिका? दैट इज द क्वेश्चन. सी गाइस, देखो, हमें ये पता है कि टाइम क्रंच है. एग्जाम में टाइम हमारे पास उतना है नहीं जितना हमें आइडियली चाहिए. सो देयर इज डेफिनेटली टाइम क्रंच इन द एग्जाम. सो व्हाट दे यूजुअली डू इज वो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डालते हैं. पता है क्यों? आपको पैनिक कराने के लिए. पैनिक कराने के लिए मतलब क्या? देखो, अगर मान लो लेट्स से आई हैव एलोकेटेड 15 मिनट्स टू इंग्लिश सेक्शन के, मैं इंग्लिश में 15 मिनट में अटेम्प्ट करूंगा. अगर मैं पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू कर देता हूँ, राइट, एंड आई स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो पहले 4 मिनट 5 मिनट तो पैसेज पढ़ने में लग जाएंगे और अगले 2-3 मिनट पैसेज सॉल्व करने में लग जाएंगे. तो सोचो, 7-8 मिनट अगर आपके पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में निकल गए, तो व्हेन यू फिनिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अपने घड़ी की तरफ देखोगे और आपको क्या दिखेगा कि यार अभी मतलब आउट ऑफ 30 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं और मेरा आधा टाइम, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टाइम निकल गया, या आधा टाइम निकल गया जो इंग्लिश में मुझे अटेम्प्ट करना था. अब बच्चा इस सिचुएशन में क्या होता है, वो मतलब ना मेंटली वो पैनिक करना शुरू कर देता है, एंक्शियस हो जाता है कि हाय अब जल्दी जल्दी करना है यार, अब छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूंगा. वो जल्दी जल्दी में जब आप करने बैठते हो ना, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स. और वहीं पे वो बिल्डअप करना चाह रहा है, वही वो देखना चाह रहा है कि कौन बच्चा है जो मतलब ब्लाइंडली आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कि जो आगे आंखों के आगे आगे वो कर दिया. गाइस, आप अभी भी ऐसे करते हो क्या कि जो आपने पेपर शुरू किया, जो क्वेश्चन आंखों के आगे आता रहा, आपको लग रहा है मैं कर लूंगा तो ट्राई किया, जो लग रहा है नहीं करूंगा तो छोड़ते चले गए. अगर आप अगर आप वो स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हो ना, तो आप फिर यू आर एमिंग ब्लाइंडली इन द इन द एयर, मतलब अंधेरे में तुक्के मार रहे हो, तीर मार रहे हो आप. क्यों भाई? आप प्रिपेयर तो, आप स्ट्रैटेजाइज तो कर ही नहीं रहे कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं. जब तक वो आपको नहीं पता होगा, यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर द द आइडियल मार्क्स जो आपको टारगेट करना है, वो कभी नहीं हो पाएगा. तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमेशा आपका आपके पेपर में? ठीक है, इट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटे क्वेश्चन शुरू करो, स्मॉलर क्वेश्चन सबसे पहले वो करने हैं. कौन से स्मॉलर क्वेश्चन? जैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, सिंगल फिलर के क्वेश्चन आएंगे, डबल फिलर के क्वेश्चन आएंगे. वो क्वेश्चन जो एक सेंटेंस पढ़ के सॉल्व कर सकते हो आप, वो जैसे अभी वर्ड रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे. तो पहला 1 मिनट एक बार पूरा पेपर को स्कैन करने में लगाना कि 30 क्वेश्चंस हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने हैं पहले क्या करो? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो, आपने देखा 8 क्वेश्चंस हैं. फिर आपने देखा क्लोज टेस्ट पे कितने क्वेश्चंस हैं, क्लोज टेस्ट में देखा आपने 5 हैं. फिर आपने देखा एरर डिटेक्शन के कितने क्वेश्चंस हैं, आपने देखा एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चंस हैं. आपने देखा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस हैं, रीअरेंजमेंट के आपने देखा उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं. आपने देखा डबल फिलर्स के कितने क्वेश्चंस हैं, मतलब उसमें एक सेंटेंस में आपको 2 ब्लैंक दिए हुए, उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं. तो 12 और ये 20 और 25 और 5 क्वेश्चन में आपके एंड में रह गया. उसने क्या बना दिया, एक जैसे उसने बना दिया मैच द कॉलम बना दिए, कि मैच द कॉलम के उसने 4 क्वेश्चंस बना दिए या 3 क्वेश्चंस बना दिए, 2 उसने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दे दिए. तो आपको अब ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि यार मेरे जो बड़े जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे बड़े क्वेश्चंस हैं. तो 13 मार्क्स के जो है वो मेरे बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें टाइम लगेगा. ये जो है मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. तो मैं पहले टारगेट करूंगा इन क्वेश्चंस को, छोटे जो क्वेश्चन है लेट्स से. ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनमें टाइम एफिशिएंसी होती है guys. देखा, इसमें बेसिक एफिशिएंसी क्या है? एरर वाले में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, मैंने ध्यान से पढ़ा, मुझे अगर उसमें गलती दिखती है तो ठीक है, नहीं मैंने दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ा, 2 बार पढ़ने में अगर मुझे उसमें गलती दिखी तो ठीक है, अगर लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रही गलती तो मैं उसको स्किप करके आगे वाले पे बढ़ सकता हूँ. राइट, तो मेरा टाइम उतना वेस्ट नहीं होगा, हार्डली कितनी 30 सेकंड जाएंगी. लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर सोचा यार स्किप कर देता हूँ, फिर आगे वाला पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ, वापस आके यहीं से दोबारा पढ़ लूँगा, वो हो नहीं पाएगा. तो पहले हमेशा छोटे क्वेश्चन को टारगेट करो ताकि आपकी टाइम की एफिशिएंसी निकले. आपने एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन देखे, आपने देखा 2 मिनट में मेरे 4 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स का मेरा गेम पेपर बन गया. फिर आपने देखा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपने देखा 3 मिनट में मेरे ये वाले क्वेश्चन बन गए, तो मेरे ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए. डबल फिलर्स आपने देखा 40-40 सेकंड्स में हो रहे थे क्वेश्चन, तो मतलब अगर 3 मिनट में मेरे ये वाले क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक बार ये देखना, 8 मिनट में आपने शॉर्ट आपने 12 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए. ठीक है, और वहीं पे अगर आपने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू किया होता तो आप पहली 8 मिनट में सिर्फ ये 8 क्वेश्चन टारगेट कर पाते, जिसमें आप पूरा पैसेज पढ़ते, फिर क्वेश्चन पढ़ते, फिर आंसर निकालते. राइट, तो अब यही डिफरेंस है. आप पहली हाँ जी, पहली 7-8 मिनट में, 8-10 मिनट में अगर आप ये 8 क्वेश्चन निकालोगे
तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी प्रोडक्टिव। तो पहली 12 मिनट में आपने क्या किया, अपने 12 क्वेश्चन टारगेट कर दिए, सॉरी 8 मिनट में 12 क्वेश्चन टारगेट कर दिया आपने अपने। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 12 में से एटलीस्ट 10-11 तो मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ तो हमारी बन गई वहाँ से। अब हमने क्या किया, फिर मैं आया मैच द कॉलम पे। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट लग रहा था, तो मैंने 5 मिनट लगाए और मैंने इनमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए लेट्स से। तो टोटल मेरे अभी टाइम कितना हुआ है, 12-13 मिनट गए हैं, और मेरे पास अभी भी ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब मैं जो टाइम इन्वेस्ट करूंगा, पहले मैंने क्लोज टेस्ट देखा, 3 मिनट में मैंने क्लोज टेस्ट कर दिया सारा, और फिर मैंने 5-6 मिनट लगा के अपना आरसी जितना हो सका मैंने उसको अटेम्प्ट किया। तो दिस वे यू कैन टारगेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये याद रखना, स्टार्ट विद स्मॉलर क्वेश्चंस एंड देन मूव टुवर्ड्स लॉन्गर क्वेश्चंस। क्योंकि लॉन्गर क्वेश्चंस वो जितने इजी होते हैं क्वेश्चन उसमें आंसर ढूंढना, लेकिन उसमें कैच यही होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपके पास टाइम की लग्जरी है नहीं। तो अब ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपने अटेम्प्ट किया, आपने देखा ये वाले ये हो गए मेरे अच्छे से, ये हो गए मेरे, ये हो गए और ये हो गए मेरे, तो आपको लग रहा है कि यार मेरा 15-17 मार्क्स का हो गया पेपर मेरा। इसके बाद मैंने बस क्लोज टेस्ट अच्छे से कर लिया, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ भी दिया ना, तो भी मुझे पता है कि मेरे 22 मार्क्स में बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, मेरे 20 पक्का आ जाएंगे। राइट, तो इस तरह से आप अपना चूज करके छोड़ सकते हो क्वेश्चंस, वो लिबर्टी रहेगी आपके पास, अपने टाइम मैनेज कर पाओगे आप। लेकिन अगर आपने बड़े क्वेश्चन से शुरू किया ना, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। सो ये आपको स्ट्रैटेजी याद रखनी है, स्टार्ट विद स्मॉलर क्वेश्चंस। हाँ, आ सकते हैं बिल्कुल, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी बनते हैं। सी डिपेंड्स ऑन यू शिवानी बाय द वे, बट मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो गाइस कि आपका 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का पेपर है। ठीक है, इसमें आपको 200 क्वेश्चन करना है। अब 200 क्वेश्चन की बाइफर्केशन क्या है, जो 100 क्वेश्चन है वो आपका मेरिट सेक्शन है, और बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है, विच इज़ योर क्यू आर ई पार्ट, क्यू आर ई कंप्यूटर और ये वाला पार्ट। बाकी आपका जी ए, करंट अफेयर्स, ए आर डी, ए एस आई, ये सब आपका मेरिट सेक्शन है। तो आपका फोकस बेसिकली 60-40 होना चाहिए टाइम का। तो मतलब 60% ऑफ द टाइम आप मेरिट सेक्शन को दो, 40% टाइम आप अपने क्वालिफाइंग सेक्शन को दो, क्योंकि क्वालिफाई तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें मार्क्स लेने से ये पूरा पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर इसमें नहीं आए क्वालिफाइंग, चाहे आप इसमें 100 में से 100 ले लेना, यू विल नॉट बी एबल टू गो फर्दर। तो 60-40 का टाइम रखो, मतलब 60-40 कितना हो गया, लगभग लगभग आउट ऑफ 120 मिनट्स, अगर हम बोलते हैं कि 50 मिनट्स शुड बी एलोकेटेड टू दिस, तो 50 मिनट्स फॉर योर क्यू आर ई पार्ट एंड 70 मिनट्स फॉर योर आपका ये जो ये वाला पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाला पार्ट थोड़ा जल्दी कर सकते हो, जो मेरिट सेक्शन है आपका जल्दी कर सकते हो, 70 मिनट से कम ले सकते हो, तो वो टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे क्यू आर ई वाले में। राइट, तो इसमें से 50 प्लस होना चाहिए, 50 से कम नहीं। अब 50 में अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो आई थिंक आपका क्वांट्स और रीजनिंग एटलीस्ट 15 मिनट तो क्वांट्स लेगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 मिनट ये लेगा, और 15 मिनट एटलीस्ट रीजनिंग लेगा आपके, क्योंकि उसमें भी 20 क्वेश्चन है। 40 इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं, इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा आती है, तो इसको आई थिंक हम 20 मिनट्स हम एलोकेट कर सकते हैं। तो 15 प्लस 15 30 प्लस 20 50 ये हो गया। और बाकी जो आपका कंप्यूटर वाला और जो डिसीजन मेकिंग अगर आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2-4 मिनट बफर में से उसे निकाल सकते हो। तो आइडियली इंग्लिश को 20 मिनट आपको देने चाहिए। अगर आप 20 मिनट में अगर आप 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो, जो कि होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल। और इंग्लिश का तो पार्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 2 में भी जाके आपको इंग्लिश का एक डेजिग्नेटेड पेपर आता ही आता है। राइट, सो दैट वाज द पॉइंट। सो ये स्ट्रैटेजी याद रखना कि कभी भी आंख बंद करके सीधा पेपर में मत घुसो, हमेशा क्वेश्चन को स्कैन करो। ठीक है, स्कैन करके फिर देखो कि कौन से छोटे क्वेश्चन है, उनको पहले टारगेट करो, फिर बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। तो डू यू वांट टू ट्राई दिस? आपके बार ये ट्राई करके देखना है आपने, जो हम अभी और प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो डू यू वांट टू ट्राई दिस अप्रोच कि यार पहले एक बार पूरा पूरा पेपर स्कैन करते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम की में कैसे करना है, और फिर हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन पहले टारगेट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में टारगेट करने हैं, एंड फिर हमें कितने टारगेट करने हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो यू वांट टू टेक दिस? यस गाइस, शैल वी ट्राई दिस नाउ? चलो शुरू करते हैं गाइस। कीप योर पेन एंड पेपर रेडी विद यू। ठीक है, अपना पेन और पेपर साथ रखना, ताकि हम एंड में फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या स्कोर रहा, एंड डू लेट मी नो दिस टाइम। प्रतीक्षा, वेल डन। लेट्स यूनाइट। 22 नॉट बैड, विदाउट प्रैक्टिसिंग 22 इज नॉट बैड। सरकारी नौकरी 23 वेरी गुड। ठीक है, एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं गाइस।
तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शंस देखते हैं आपने बस ये क्या करना है। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन इन बोल्ड विच में, तो हमें वर्ड रीअरेंज करने हैं, तो छोटे क्वेश्चन है। तो पहले 5 स्मॉल क्वेश्चंस हो गए हमारे, मार्क कर लिया हमने अपने। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे सिंगल लाइनर हो गए, हमारे टारगेट क्वेश्चन है पहले। फिर क्या करना है हमें, अ सेंटेंस इज गिवन इन शफल्ड मैनर, वी हैव टू अरेंज दीज पार्ट्स, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है। ये भी सिंगल सिंगल लाइनर बेस्ड है, 6 से 10, तो ये 5 क्वेश्चन भी हमारे छोटे हो गए। ये भी हमारे पहले 10 क्वेश्चन टारगेट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह से टारगेट करते चलो अपने क्वेश्चंस को। देन फिर उसके बाद 11 to 15 डबल फिलर्स क्वेश्चंस हैं। ये भी छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंगल लाइनर है। तो ये भी हमारे 5 क्वेश्चंस हमारे स्मॉल में आ गए, स्मॉल क्वेश्चंस में। इनको भी हम टारगेट करेंगे डबल फिलर्स वाले के। एक सेंटेंस पढ़ के आप 2 ब्लैंक भर के इसमें अपने 5 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। तो पहले 15 क्वेश्चन छोटे हो गए इसमें। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया, हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड विच ऑफ द गिवन पार्ट्स इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो एरर ढूंढना है हमें। ये 5 क्वेश्चन भी छोटे हो गए, तो बड़ा लक्की हो गया यार। ठीक है, ये तो सारा पेपर छोटा आ गया। तो पहले 20 क्वेश्चन मेरे टारगेट क्वेश्चन हो गए जो सिंगल लाइनर है। अब इसके बाद ये देखो, ये आए बड़े क्वेश्चन 21 to 25 क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन है। ये हो गया मेरा लार्ज क्वेश्चन जो मैं एंड में करूंगा। ठीक है, तो 21, 22, 24, 25 ये हो गए। 26 ये हमारा फिर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो ये भी लार्ज वाला आ गया। तो ये देखो, ये 20 to 30 है जो मुझे वो लास्ट में करने हैं हमें, इस तरह टारगेट करके। और जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमें पहले करना है। इस तरह से एक बार अपने क्वेश्चंस को टारगेट कर लो पहले। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है। ठीक है, और फिर उस मैनर में करके अपना पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। तो एक बार अब इस मैनर में ट्राई करके देखते हैं गाइस। चलो, अब इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, आपको खुद पढ़ना है सारे क्वेश्चंस, सारी डायरेक्शंस खुद पढ़नी है और खुद सॉल्व करना है। ठीक है, चलो डायरेक्शंस मैं पढ़ दूंगा लेकिन क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद पढ़ना है, खुद सॉल्व करना है। Fair enough. So let's start, guys. Question number 1 to 5. In each of the following questions, 4 words have been highlighted in bold, which may or may not be in their correct positions. You are required to interchange them in order to form a meaningful and coherent sentence. If all the words are correctly placed, mark E. That is no rearrangement required as your answer. चलो एक करवाता हूँ यार आपको। आप बोलोगे सर आप तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, उसने 4 वर्ड बोल्ड करके दिए हैं और वो उनको हमें एक दूसरे से रिप्लेस करना है। ठीक है, आप देख, और फिर एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस फर्स्ट एडवांस डैश फॉर इकोनॉमिक आउटपुट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एन dash forecast that flags some positive trends as well as areas of concern that have the potential to estimates the growth momentum. Chalo. So the National Statistical Office first advance derail, advance optimistic, advance estimates या advance momentum. तो आई थिंक यहाँ पे क्या आना चाहिए, द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस advance estimates for economic output in the current financial year is an optimistic, no, is a is a is an optimistic, अच्छा हाँ ठीक है, is an optimistic forecast है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक है बिल्कुल, is an optimistic forecast that flags some positive trends as well as areas of concerns that have the potential to derail, अब वो ए के साथ सी हो गया, derail the growth momentum, so it should be C पहले आना चाहिए, फिर B, फिर आना चाहिए A और फिर आना चाहिए D, CBAD, सो C इज योर ऑप्शन। ठीक है, समझ आएगा कैसे करने हैं। हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, अब आपको खुद पढ़ना है और खुद आंसर करना है। चलो गाइज, सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से मुझे आंसर बताना है आपने चैट बॉक्स में।
Yes guys, what is the right answer? Very good Ritika, very good. Sarkari Naukri, very good Amit, very good Priya, very good Kaveri. It should be the NSO has projected, ये ठीक था बिल्कुल. NSO has projected real GDP for the 12 months ending March 2022 at 147.5 lakh crore. A 9.2% expansion, ये आएगा B में. A 9.2% expansion from the provisional estimates of 135 lakh crore for the last fiscal year when the full fury, फिर आएगा ये, when the full fury of the COVID-19 pandemic had caused output to contract by 7.3%. तो अगली बार expand किया है. So A, C, B and D. So correct option was option number B. Very well done guys. Very good Kaveri, very good Saloni. चलो guys, next question. Quickly. फटाफट से आंसर बता दो मुझे सॉल्व करके. Yes guys, मुझे तो आंसर मिल चुका है. Very good Ritika. Very good Kaveri. Yes guys, what about the rest of you? The correct answer is no rearrangement. The sentence was correct as it is. Very good, Sarkari Naukri. It is a matter of considerable relief that the Supreme Court has allowed the commencement of counselling for the postgraduate medical admissions under the All India quota at a time when the long delay has caused a shortage of junior residents in the midst of an ongoing public health crisis. So no rearrangement was required. Next question, guys. Yes, guys, क्या आना चाहिए? Very good, Amit. Very good, Ritika. Very good, Priya. Delhi police nabbed. ये आएगा पहले. Delhi police not recovered two fraudsters, nabbed two fraudsters for creating fake partner IDs of Shadowfax company and causing a loss to the tune of rupees 4 lakh rupees. Police also recovered. फिर आएगा ये. Police also recovered 2 mobile phones and 8 SIM cards from their possession. So CBAD. Option C was the right option. Alright. Last question of this type guys. चलो फटाफट से करके बता दो अब ये वाला मुझे. No, Ritika. Very good, Priya. Very good, Kaveri. नहीं सरकारी नौकरी. Very good, iOS. Very good, Amit. नहीं रितिका, ई गलत है. देखना एक बार. यहाँ पे होना चाहिए in a bid to sensitize, not expedite the farmers. In a bid to sensitize the farmers on the paddy procurement drive and to expedite the process. Expedite होता है उसको स्मूथ मतलब जल्दी कर देना. तो उसको जल्दी कर देना, क्विकन द प्रोसेस. सो टू सेंसिटाइज द फार्मर्स अबाउट द प्रोक्योरमेंट ड्राइव एंड टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस. ठीक है, एक्सपीडाइट मतलब उसको स्मूथ और स्विफ्ट बना देना, जल्दी हो जाए. तो एंड टू expedite the process, the Assam government will organize a
A special Gaon Sabha across the country on January 16 is aiming to procure 10 lakh metric tons of paddy from the farmers this year. So it should be BACD. BACD. D was the right answer. To expedite the process. Very good. वेरी वेल डन गाइस. तो ये ऐसे वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं आपको. अब एक ये वाले क्वेश्चन देखना, पार्ट रीअरेंजमेंट में. In the questions given below, parts of a sentence are given in shuffled manner. Arrange the parts in a meaningful order and mark the correct option as the answer. So we have to rearrange the parts of the sentence. For conducting phase 3 clinical trials of vaccine manufacturer Bharat Biotech approval, the Drugs Controller General of India has given who have received both doses of Covaxin and an intranasal booster dose for those. Very good. Yes, guys, what should be the right option? The first part should be the DCGI, Drugs Controller General of India, has given vaccine manufacturer Bharat Biotech approval for conducting phase 3 clinical trials of the trials of an intranasal booster dose for those who have received both doses of Covaxin. So it should be CBADE. CBAD. अरे नहीं, फॉर दोज हु हैव रिसीव्ड, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ शायद. ये 4 होना चाहिए ना. हाँ, ये 3, ये 3 होना चाहिए, सॉरी. सो CBAED. Yes, guys, what is the right option? Option number B. Yes. Chalo, guys, next question. Question number 7. The South Delhi Municipal Corporation on Friday of civic bodies waste to Wonder Park passed resolutions to construct the second phase of 46 crore and 51 crore respectively and the Bharat Darshan Park at an estimated cost. ये वाला तो इजी है, ये तो हो जाना चाहिए जल्दी गाइस. वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अमित. नहीं कावेरी, ये गलत हो गया. पूरा करके देखा करो, छोटे से शॉर्टकट की वजह से गलती हो जाती है. वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड सरकारी नौकरी. नहीं सचिन, गलत हो गया. कैसे होना चाहिए देखो, द साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SDMC ऑन फ्राइडे, फिर आना चाहिए सी पार्ट, पास रेजोल्यूशंस टू कंस्ट्रक्ट द सेकंड फेज. फिर आना चाहिए पार्ट नंबर बी ऑफ द सिविक बॉडीज वेस्ट टू वंडर पार्क, एंड फिर आना चाहिए ई एंड द भारत दर्शन पार्क एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ rupees 46 crore and rupees 51 crore respectively. So last part should be D. ED. So A, C, B, E and then D. So A was the correct option here. A, C, B, E and D. Yes, Naman. Very good. Very good, Ritika. B कहाँ से आ गया? चलो guys, next question का answer. The Railways Recruitment Board exam evoked a mixed response on Friday. The Bihar Bandh, called by some students' bodies and vehicles in different parts of the state, with protesters disrupting movements of trains and supported by the opposition parties over irregularities in.
यस गाइस, इसमें बताओ क्या आना चाहिए. वेरी गुड नमन. नहीं, सरकारी नौकरी गलत हो गई है. नहीं निरंजन, नहीं अमित. वेरी गुड नमन. क्या होना चाहिए था गाइस? देखो, इसमें फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए था बी. द बिहार बंद कॉल्ड बाय सम स्टूडेंट बॉडीज. फिर होना चाहिए था ई. द बिहार बंद कॉल्ड बाय सम स्टूडेंट बॉडीज एंड सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज ओवर इरेगुलरिटीज इन. फिर होना चाहिए था ए. इन irregularities in the railways recruitment exam evoked a mixed response on Friday, uh, with protesters disrupting movements of trains and फिर आना चाहिए and vehicles in different parts of the state. So the first part should be B, second should be E, third should be A, fourth should be D, and fifth should be C. B, E, A, D, C. C was the correct answer. So the sentence should be the Bihar Bandh called by some student bodies and supported by the opposition parties over irregularities in the Railways Recruitment Board exam evoked a mixed response on Friday, uh, with protesters disrupting movements of trains and vehicles in different parts of the state. So C was the correct option. Okay. Next question, guys. Yes, guys, what is the right answer? Very good, Amit. Very good, Sarkari Naukri. Very good, Naman. Very good, Niranjan. Very good, Ritika. Very good, Aditya. The first sentence should be Maharashtra has topped India's list. Then it should be in the number of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) owned by entrepreneurs from the scheduled castes with as many as 96,805 enterprises. So D, A, E, C, B. D was the correct answer. Very good, Priya. Very good, Saurav. Keep it up, guys. And last question of this type. चलो guys, फटाफट से बताओ, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. Very good, Priya. Very good, Amit. Very good, Naman. Very good, Ritika. Very good, Aditya. Very good, Niranjan. Very well done, guys. Very good, Saurav. The first part should be B. The Ministry of
External Affairs, MEA has said India, then it should be E. India is monitoring the situation in eastern Ukraine. Then it should be C. Eastern Ukraine, where a tense military situation has erupted after Russia. Then it should be A. Placed a large number of troops and heavy weapons. Then it should be D. Along Ukraine's frontiers, triggering worldwide fear of imminent military action. So B, E, C, A, D. B, E, C, A, D. Option A was the right option. Very good, Kaveri. Very good, Neha. Very well done, guys. चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. डबल ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें. यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वर्ड्स कैन फिल दीज ब्लैंक्स. तो सेंटेंस है, द गवर्नमेंट्स फेलियर टू डैश टू द कोर्ट what logic had dash it to fix an annual income ceiling of rupees 8 lakhs for selection of economically weaker section had held up counseling for medical courses. The government's failure to explain to the court, untangle to the court, play to the court, guide to the court, or none of the above. What logic had prompted it, rise it, induced it या dissolved it? ठीक है, had के साथ rise हो नहीं सकता तो ये eliminate हो गया. Dissolved है, dissolved it to fix, dissolved to fix ये नहीं हो सकता. तो अब A या C बचता है अपने पास. ठीक है, गवर्नमेंट्स फेलियर टू एक्सप्लेन और प्ले टू द कोर्ट दैट व्हाट लॉजिक हैड इंड्यूस्ड या प्रॉम्प्टेड. आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. द गवर्नमेंट्स फेलियर टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट व्हाट लॉजिक हैड prompted it to fix, prompt to do something, so prompted it to fix an annual income ceiling of 8 lakh rupees. Very well done, guys. Next question. The Supreme Court on Friday dashed down a CBSE rule that said the marks dashed by the students in their improvement exams would be final even if they had secured higher scores in the regular exams. The Supreme Court on Friday dashed down a CBSE rule, plugged down, smite down, struck down, or punched down a CBSE rule that said the marks derived by students, grabbed by students, obtained by students, or played by students. Very well done, guys. The Supreme Court on Friday plugged doesn't make sense. Derived marks नहीं होते, marks grab नहीं किए जाते, smite होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, स्ट्रक होता है किसी को काट देना, पंच मुक्का मारना. तो आई थिंक यहीं से क्लियर हो गया था. द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रक डाउन. तो स्ट्राइक डाउन मतलब किसी चीज़ को खारिज कर देना या मतलब नल कर देना. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रक डाउन अ CBSE रूल दैट सेड मार्क्स obtained by students in their improvement exams would be final even if they had secured higher scores in their regular exams. Very well done, guys. Keep it up. Next question. Ethiopia's government says it will dash several prominent opposition figures as the country dash Orthodox Christmas. Yes, guys. देखो गाइस, एक और चीज़ आपको बहुत काम की बता देता हूँ. ठीक है, याद रखना एक चीज़, वहाँ पे जितने क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं. मैं एटलीस्ट वो आपके क्वालिफाइंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में. हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा 1/3 जो क्वेश्चंस है ना, वो याद रखना वो ईजी होंगे. 1/3 क्वेश्चंस जो है ना, याद रखना वो मॉडरेट होंगे. और ये भी याद रखना 1/3 जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट भी होंगे. तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे टारगेट क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, ये और ये, और इनमें से जितने हम निकाल पाएँ उतने पॉसिबल. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार नहीं मुझे श्योरिटी नहीं आ रही इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा अटैम्प्ट करके ही आना है. ठीक है, उसको स्किप कर दो या बाद के लिए छोड़ दो कि बाद में देखेंगे अगर टाइम लगा तो. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए नहीं था, बी था गाइस.
ठीक है, क्यों? वो इथोपिया क्या कह रहा है, इथोपिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि सेवरल प्रोमिनेंट ऑपोजिशन फिगर्स, मतलब खिलाफत में जो अपोजिट के जो लीडर्स हैं, तो द इथोपियाज गवर्नमेंट सेज इट विल फ्री, मतलब वो आज़ाद कर देंगे, इट विल फ्री सेवरल प्रोमिनेंट ऑपोजिशन फिगर्स एज द कंट्री मार्क्स ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मतलब वो क्रिसमस जो ऑर्थोडॉक्स लोग बनाते हैं, ठीक है, अपने तौर तरीकों से। मार्क्स मतलब वो फिर से वो क्रिसमस दोबारा से इस साल मनाएंगे उस तरह से। तो जब देश ऐसा कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस बनाएगा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, व्हेन इंडिया मार्क्स 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, या व्हेन इंडिया मार्क्स 100th एनिवर्सरी फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, मतलब उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई क्योंकि इस साल 75 ईयर्स हो गए, तो ये हम इस करके हम ये चीज़ कर रहे हैं, अमृतकाल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह रहे थे परमिट, इट विल परमिट सेवरल, परमिट मतलब उनको आज़ादी देना, मतलब उनको परमिशन देना, सॉरी। तो इथोपिया गवर्नमेंट कह रही है कि वो बहुत सारे अपोजिशन फिगर को परमिट दे देगी एज द कंट्री ब्रिंग्स ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। वो कहाँ से लेके आएंगे क्रिसमस? क्रिसमस ब्रिंग्स नहीं, क्रिसमस को बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी वाज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड अमित, कीप इट अप गाइस, वेरी गुड कावेरी। ठीक है गाइस, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेगा, और वो आपसे वो गलती करवाएगा, और वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। The Assam government on Friday dashed that unvaccinated people would be dashed from public spaces and transport. Publicized, concealed, suppressed or announced, barred, secured, reported or barred. Very well done guys. नहीं शिवानी, गड़बड़ हो गया। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड ऋतिका, रोजा, नमन, निरंजन, आदित्य, सौरभ, नेहा, सचिन, वेरी वेल डन। ठीक है, द असम गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे पब्लिसाइज्ड हो सकता था, लेकिन बेयर्ड क्या होता है? ठीक है, डजंट मीन्स। वुड बी सिक्योर्ड हो सकता था, लेकिन कंसील्ड होता है छुपाना, कि गवर्नमेंट ने शुक्रवार को छुपाया नहीं। सप्रेस मतलब दबाना नहीं। अनाउंस्ड, द असम गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड दैट अनवैक्सीनेटेड पीपल वुड बी बार्ड, मतलब उनको जाने नहीं दिया जाएगा, बार्ड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड सचिन, कारी नौकरी, कावेरी, सलोनी, कीप इट अप गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑफ दिस टाइप, फिर आगे बढ़ेंगे। The human rights group dash a huge blow after the court dash to grant bail to a rights activist. The human rights group suffered, granted, invaded या violated after the court refused, diffused, poised या alleged. Suffered a huge blow, very good, क्योंकि झटका लगना जिसको हम बोलते हैं ना कि बड़ा बहुत बड़ा झटका लगा। तो द ह्यूमन राइट्स ग्रुप suffered a huge blow after the court refused to grant bail. ठीक है, सफर्ड, ग्रांटेड, ग्रांटेड अ ह्यूज ब्लो नहीं, इन्वेडेड अ ह्यूज ब्लो नो, वायलेटेड अ ह्यूज ब्लो वहीं से क्लियर हो रहा था। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सफर्ड अ ह्यूज ब्लो आफ्टर द कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट बेल। डिफ्यूज होता है किसी को डिफ्यूज कर देना, डिफ्यूजन, फैला देना। पॉइज्ड मतलब एक जगह खड़ा कर देना, पॉइज बना देना। और अलेज्ड मतलब किसी पे इल्जाम लगाना। द राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइस, वेरी वेल डन। अब ये एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ। ठीक है, ये भी आएंगे एग्जाम में, गारंटीड आएंगे, और इनको अच्छे से तैयारी करके जाना है गाइस। तो sentence has been divided into 5 parts. You have to required to find which part has an error, और parts इसमें ये भी याद रखना है, इस ट्रिकी क्या है, जरूरी नहीं है एक पार्ट में है, तो हो सकता है दो पार्ट में भी हो। ऑप्शंस देख लो एक बार। तो उसने वो दिया हुआ है पार्ट या पार्ट्स, इज या आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो गलती वाले हमें पार्ट ढूंढने हैं। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। द यूएस डिक्लेयर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑन फ्राइडे ऑन February 2020 when the source of infection were untraceable in one instance, only 15 cases were detected then.
ए एंड ई। iOS क्या लगी, ए और ई में गलतियां क्या लगी आपको? ए में और ई में क्या गलती लगी प्रिया? देखो, एक गलती जो मुझे क्लियरली मिल गई थी वो क्या थी? द यूएस डिक्लेयर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑन February 2020 व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स सिंगुलर है ना, व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वर अनट्रेसेबल की जगह पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज अनट्रेसेबल इन वन इंस्टेंस। सो यहाँ पे डी में तो क्लियरली एक गलती थी। अब मैं जब ऑप्शन की तरफ देख रहा था तो एक में ही गलती मिल रही थी, वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वैलिड वैलिड मतलब वही मार्क होता है, लेकिन मैं एक बार बी में भी एरर देख रहा था। अब देखना, व्हेन यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे ऑन फेब्रवरी नहीं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि ऑन कब यूज़ करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक डेट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब पर्टिकुलर डेट के लिए जब हम व्हेन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम ऑन या तो 1 फरवरी, ऑन 3 फरवरी ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब हम मंथ की बात कर रहे हैं ना, तो ऑन नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, इन। So that US declared community transmission in February 2020 when the source of infection was untraceable in one instance. Only 15 cases were detected then. So B and D ये गलत पार्ट्स थे इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ के सॉल्व करना होता है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Service and the sacrifices of nameless and faceless nation builders have formed the bedrock of the modern India Republic. Yes guys, मिला कोई आंसर? नहीं, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड रोजा, वेरी गुड सरकारी नौकरी। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब हम यहाँ पे आगे प्लूरल यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था हमने, ऐसा कभी नहीं होता कि सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है और पहले से पहले आर्टिकल ना आए। तो यहाँ पे क्या बनता है, द सर्विस एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स हैव फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो द है ना, ये गलत है। हैव फॉर्म्ड द बेडरॉक ऑफ द मॉडर्न इंडिया रिपब्लिक, या हैव फॉर्म्ड बेडरॉक ऑफ द मॉडर्न इंडिया रिपब्लिक। सो द बेडरॉक नहीं, बेडरॉक वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि उसकी फाउंडेशन जो है। तो द सर्विस एंड द sacrifices of nameless and faceless nation builders have formed bedrock of the modern India Republic. That was the right answer. So A and D had errors in them. Chalo guys, next question. The Karnataka government has set it up an expert committee to resolve the issue involving wearing hijabs inside classrooms as it go against school uniform policy in UDP. इसमें आपको पता लग जाना चाहिए गाइस।
नहीं, सरकारी नौकरी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन नहीं, क्या होता है अगर पहले नाउन से पहले आर्टिकल है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एक ही इंसान के नाम है। जैसे द चेयरमैन एंड क्या बोलते हैं, ये चलो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। द वाइस प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री टीचर, इसका मतलब एक ही इंसान है। पहले के सामने आर्टिकल है, दूसरे के सामने आर्टिकल नहीं है। सो द वाइस प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री टीचर इज ऑन लीव टुडे। लेकिन अगर दोनों के सामने आर्टिकल होगा तो प्लूरल होंगे, मतलब अलग अलग इंसान है। जैसे द वाइस प्रिंसिपल एंड द हिस्ट्री टीचर आर ऑन लीव टुडे, तो ये होता है। लेकिन ये कभी नहीं होता पहले के सामने आर्टिकल नहीं है, दूसरे के सामने आर्टिकल हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वेरी वेल डन गाइस, ऑप्शन बी वाज द राइट ऑप्शन। सेटेड कोई वर्ड नहीं होता, पहले तो द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज सेट अप an expert committee to resolve the issue involving wearing hijabs inside classrooms as it go nahi as it goes against, school uniform policy in UDP. So A and D were the right options. So option B is the correct answer. Very well done guys. Yes, please, guys, you will get the PDF of this lecture. If you want the PDF, you can join our Telegram channel. It will be provided for free. So you can go and get the PDF from there. It is already uploaded, I think. Yes, good. Chalo guys, next question. Question number 19. The security forces had launched a cordon and search operation in the Czech Naugam area of Shopian following information about the presence of militants there. ये चेक नाउगाम, ये एक नाम, ये जगह का नाम है। शोपियान भी एक जगह का नाम है, आई थिंक कश्मीर में। So the security forces had launched a cordon and search operation in the Cheknaogam area of Shopian following information about the presence of militants there. सी एंड ई, सी में क्या गलती लगी गाइस? अमित, सरकारी नौकरी, रितिका, नेहा। देखो ई में गलती थी, ये तो समझ आ गया। द सिक्योरिटी फोर्सेस हैड लॉन्च्ड अ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इन द चेक नाउगाम एरिया ऑफ शोपियान फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट ऑफ मिलिटेंट्स देयर। नहीं, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंट तो होता है अभी प्रेजेंट है, लेकिन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स देयर, तो ई में गलती थी। सी में क्या गलती थी गाइस? अच्छा, सी ऑप्शन कह रहे थे या क्या कह रहे थे? अब बदलो मत, तुमने ऑप्शन तो ई लिखा था। C is the correct answer. Only E has error in it. The security forces had launched a coordinate search operation in the Cheknaugam area of Shopian following information about the presence of militants there. So only E is the right answer. And last question, guys. 7 people lost their life and 30 others have fall ill after consuming spurious liquor in a village in Uttar Pradesh's Rai Bareilly district. तो ऑप्शन ई में क्या था? ऑप्शन ई में दो ऑप्शन थे, सी एंड ई, सरकारी नौकरी। सी में क्या गलती थी, बताओ जरा।
Very well done, guys. See the error, there were two errors. 7 people lost their life, नहीं lives. Life का plural क्या होता है? Lives. So 7 people lost their lives and 30 others have, मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, have fallen नहीं, have fallen ill. have के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, have fallen ill after consuming spurious, मतलब गंदी जो मिक्स्ड होते हैं ना, consuming spurious liquor in a village in Uttar Pradesh's Raebareli district. So B and C had error in them. Option A was the right answer. Very good, Priya. Very good, iOS. Very good. Fell नहीं, fallen. Have के साथ थर्ड फॉर्म यूज होते हैं iOS. Very good, सरकारी नौकरी. राजा, प्रिया, नेहा, सौरभ. Very well done. Keep it up, guys. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा गाइस, ये 10 क्वेश्चन अभी करने हैं, सॉल्व करने हैं, या आपको होमवर्क की तरह चाहिए? फटाफट से बताओ. 50 क्वेश्चन तो हमने कर लिया प्रैक्टिस. ये अभी करने हैं या आपको होमवर्क की तरह करने हैं? मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. और आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप इनके आंसर बताओगे कि इनके आंसर क्या थे, एंड देन आई विल सी कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. विल डिस्कस दैट. 30 others have, ठीक है. 7 people lost their lives and 30 others have fallen ill. 30 लोगों की तो जिंदगी चली गई और 7 लोग तो मर गए और 30 लोग और बीमार पड़ चुके हैं. किस वजह से? आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस लिकर. ठीक है. हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. यस गाइस, अभी करना है, होमवर्क करना है अभी. चलो ठीक है, अभी करते हैं. यस यस यस, चलो. तो दिस इज द क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. The schedule for assembly elections in 5 states announced by the Election Commission of India (ECI) on January 8 was along expected lines. Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7. Dash 7 phases. The Manipur polls would be held in 2 phases and the Goa, Punjab and Uttarakhand polls in 1. Given the size of the dash of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time, as in the 2017 assembly polls. In UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern of starting with the constituencies in the western part of the state first and then moving towards east. Dash reports of the BJP, Bharatiya Janata Party, asking for the phases to be from east to west. Chief Election Commissioner Sushil Chandra said the polls would be held from west to east and that no party had made a demand during the ECI's visit to UP in December to change this. चलो पढ़ लिया. चलो अब करते हैं सॉल्व इसको गाइस. The schedule for assembly elections in 5 states announced by the Election Commission of India (ECI) on January 8 was along expected lines. मतलब जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही उनका अनाउंसमेंट आया जो 5 असेंबली के इलेक्शंस के लिए था. Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7, dash 7 phases. क्या ऑप्शन आना चाहिए गाइस ए में? क्रॉसिंग 7 phases, स्पैनिंग 7 phases, एस्टिमेटिंग 7 phases या लास्टिंग 7 phases? क्या लग रहा है गाइस? वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड ऋतिका. नहीं iOS, नहीं सरकारी नौकरी, नहीं नंदिनी, नेहा नो, सौरभ वेरी गुड, रोजा नो, अमित नो, सलोनी नो. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? स्पैनिंग 7 phases. मतलब स्पैन का मतलब क्या होता है? इन अ स्पैन ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम. उसने बोला भी है कि पॉलिंग शुरू कब होगी? 10 फरवरी को और खत्म कब होगी? 7 मार्च को. मतलब स्पैनिंग इनटू 7 phases, मतलब 7 हिस्सों में बटी हुई होगी. ठीक है. लास्टिंग 7 phases मतलब, लास्टिंग मतलब कब तक चलेगी? 7 phases तक चलेगी. एस्टिमेटिंग 7 phases, क्रॉसिंग 7 phases या स्पैनिंग? क्रॉस किसको करना है यहाँ पे? लेट्स यूनाइट हमें. स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ टाइम. ओवर ए स्पैन ऑफ 10 years बोलते नहीं है? तो 10 साल के समय तक. सो स्पैनिंग मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक. सो पॉलिंग विल बिगिन इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10 and end on March 7, spanning 7 phases. Next question guys, blank number B. The Manipur polls would be held in 2 phases and the Goa, Punjab and Uttarakhand polls in 1.
given the size of the states and dash of paramilitary forces, harbor of paramilitary forces, defilement of forces, deployment of forces, devilment of forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time, as in the 2017 assembly polls. Yes, guys. Given the size of the states and the dash of paramilitary forces, harbor of, defilement of, deployment of, या devilment of. Very well done, guys. So, given the size of the states and deployment of paramilitary forces. So यहाँ पे पहले क्या था? Spanning into 7 phases. फिर यहाँ पे क्या था? Deployment of paramilitary forces. आगे पढ़ते हैं guys, ब्लैंक नंबर सी में. Given the correct answer is deployment. Given the size of states and deployment of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases. The ECI has scattered the, split the, segment the, या bifurcate the. So the ECI has bifurcate, split, segment, split या scattered the polling into 7 phases this time, as in 2017 assembly polls. Defilement होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, खराब कर देना. डेविलमेंट होता है, डेविल से बनता है वो किसी को बुरा बोलना. ठीक है, डेविल मतलब शैतान, तो किसी को शैतान बोलना. डिफाइल मतलब किसी चीज को खराब कर देना, चाहे बोल के खराब कर देना, जैसे हम अगर किसी धर्म के बारे में बुरा बोलें तो वो डिफाइलमेंट होगा, या किसी चीज को खराब कर देना, वो डिफाइल कर देना. यस गाइस, क्या आना चाहिए? Given the size of the states and deployment of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time. The ECI has scattered the polling, split the polling, segment the. देखो bifurcate has के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट? अब देखो ग्रामर भी थोड़ी यूज किया करो गाइज. ठीक है, सेगमेंट और बाइफरकेट तो आ ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. सो गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड dash of the मतलब सॉरी ये अपना deployment of the paramilitary forces, the ECI has segment the, bifurcate the, नहीं, split the या scattered the. Scattered होता है किसी को बिखेर देना, तो ECI has scattered the polling या split. It has split the polling into 7 phases. कि उन्होंने split कर दिया है, मतलब बांट दिया है उसको. ठीक है, bifurcate होता है 2 हिस्सों में बांटना. बाई का मतलब क्या होता है गाइस? बाय, बी आई से जो वर्ड शुरू होते हैं. बाइफरकेट का मतलब होता है किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटना. ठीक है, वो होता है बाइफरकेट. और वैसे भी यहाँ पे हैज के साथ बाइफरकेटेड होता तो आ सकता था, बाइफरकेट तो आ ही नहीं सकता. स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला देना किसी चीज को, जैसे बीज बीज फैलाए जाते हैं, वो स्कैटर्ड होता है. ठीक है, स्प्लिट होता है हिस्सों में बांटना. तो चलो गाइस आगे चलते हैं. गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, द ECI हैज split the polling into 7 phases this time, as in 2017 assembly polls. Next blank guys. In the UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern of starting with constituencies in the western part of the states first and then moving towards the east. So in the UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern, stuck to, jammed to, bound to या adhered to. बाउंड का मतलब बांध देना या बन जाना होता है प्रिया. द ECI हैज स्टक टू मतलब स्टिक, वही मतलब वही काम उन्होंने रिपीट किया है जो उन्होंने पहले किया था. सो इन द यूपी इलेक्शंस द ECI हैज स्टक टू इट्स अर्लियर पैटर्न. जैम टू मतलब जाम हो जाना, जैम हो जाना, फंस जाना. बाउंड टू मतलब बन जाना. अडेयर्ड मतलब किसी रूल या लॉ की वो करना, मानना करना. जैसे यू हैव टू अडेयर टू द रूल्स ऑफ लॉ, तो मतलब आपको लॉ के रूल्स मानने पड़ेंगे. द राइट ऑप्शन वाज स्टक. द ECI हैज स्टक टू इट्स अर्लियर पैटर्न, मतलब वो अभी भी अपने पिछले पैटर्न से ही उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने पहले फॉलो किया था. पैटर्न को अडेयर नहीं किया जाता, अडेयर टू द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, वो अडेयर होता है. ठीक है. सो
In the UP elections, the ECI has stuck to its earlier pattern of starting with the constituencies in the western part of the states first. मतलब पहले इलेक्शन वेस्ट से शुरू करेंगे and then moving towards the east, और फिर वो ईस्ट की तरफ आएंगे. ठीक है. Dash reports of Bharatiya Janata Party asking for the phases. अब next question, guys. Dash reports of the Bharatiya Janata Party asking for the phases to be from east to west. Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that the polls would be held from west to east and that no party has made a demand during the ECI's visit to UP in December. So, dash reports of BJP, denigrating reports of BJP, expiring reports of BJP, dismissing reports of BJP, tear trimming reports of BJP. क्या आना चाहिए guys? Very good Ritika, very good Let's Unite, very good Kaveri, very good Amit. डेनिग्रेट मतलब किसी को नीचा दिखाना. एक्सपायर तो पता ही आपको, दवाई एक्सपायर होती है. डिसमिस किसी बात को खारिज कर देना, और ट्रिमिंग मतलब धीरे धीरे जैसे आप नेल्स की ट्रिमिंग करते हो, काट के छोटा कर देना. ठीक है. तो यहाँ पे द राइट आंसर इज डिसमिसिंग द रिपोर्ट्स, डिसमिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ बीजेपी आस्किंग फॉर फेजेस फ्रॉम to be from east to west. The election commissioner Sushil Chandra said the polls would be held from west to east and that no party had made a demand during the ECI's visit to UP in December to change this. So dismissing the reports of BJP asking for phases to be from east to west. So the correct answer here was option number C, dismissing. ठीक है. तो ये थे आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस. चलो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, या ये घर से करना है या ये भी अभी करना है, बता दो गाइस फटाफट से. अभी ट्राई करना है, घर से करना है? ये तो आप आई थिंक घर से कर सकते हो, राइट? पैसेज तो आई थिंक वी कैन डू ऑन योर ओन. सो आई विल शो यू द स्लाइड्स. कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है आई थिंक. सो व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? Second is, which of the following formats allows quick shopping? Third, what are the advantages mentioned in the above passage of brick and mortar stores? For both digital and physical format following the backbone of. So which of the following is the backbone of both digital and physical format? And we have to find the antonym of the word akin. ठीक है. AVI क्या होता है सौरभ? अच्छा अभी करना है, ठीक है. यस मैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था गाइस, हमेशा याद रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आपको टारगेट करना चाहिए, आपको ढूंढना क्या है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट शॉपिंग? तो उसके एक तो हमें बैकबोन ढूंढनी है, तो अपनी अभी कीवर्ड मार्क किया करो गाइस साथ साथ. एक तो हमें बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट ढूंढना है. ठीक है. फिर हमें व्हाट आर द एडवांटेजेस मेंशन्ड इन द अबव पैसेज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोन? तो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर, तो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर के एडवांटेजेस हमें ढूंढने हैं. फिर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज क्विक शॉपिंग? इनमें से कौन सी चीज़ है जो क्विक शॉपिंग अलाउ करती है? डिजिटल शॉपिंग, रिटेल शॉपिंग, डिपार्टमेंट शॉपिंग, इनमें से कौन सी है? तो ये हमें ढूंढना है. और एक हमें ढूंढना है व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर, what will define the future of shopping according to the passage? तो अपने कीवर्ड मार्क किया करो गाइस. ठीक है. सो दैट यू ऑलवेज नो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर. अगर आप पैसेज पहले नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आप कभी भी ये पैसेज ना आप टाइम से सॉल्व नहीं कर पाओगे. मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ. देखो गाइस क्या होता है, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि मोस्टली आपने देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कहाँ डालता है? एग्जाम की बिगिनिंग में. तो सोचो अगर ये सारे क्वेश्चन अगर मैं पहले ये करने बैठ गया, ठीक है, और अगर मैंने सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, तो आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रीडिंग गाइस. रिवर्स रीडिंग क्या होती है? आप नॉर्मली कभी भी पहले पैसेज नहीं पढ़ोगे. ठीक है. आपको क्या करना है? रिवर्स रीडिंग. रिवर्स रीडिंग क्या होता है? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. और क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ने हैं, पढ़ने का मतलब है उनमें से कीवर्ड निकालने हैं आपको, ताकि जब आप पैसेज पढ़ो तो आपको पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. एक तो देखो दो चीज़ें होती हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना गाइस. देखा, एक चीज़ बताना गाइस, व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग? ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स अलाउज क्विक शॉपिंग? व्हाट आर द एडवांटेजेस मेंशन्ड इन द ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स?
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट ऑफ शॉपिंग। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन पढ़ के एक सेंट्रल थीम पता लग सकती है हमें पैसेज की, पता लग रही है, मुझे तो क्लियरली पता लग रही है शॉपिंग के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ है, और कोई डिजिटल शॉपिंग की बात हो रही है और कोई यहाँ पे फिजिकल स्टोर की शॉपिंग की बात हो रही है। तो देखो इतना कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग जाता है, एक तो सबसे पहली बात है किस चीज़ से, क्वेश्चंस में से, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको अपने कीवर्ड मिल जाते हैं। देखो गाइस, अगर आप बिना क्वेश्चंस पढ़े अगर आप पैसेज पढ़ते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है पता है, सुनना। आप देखना करते क्या हो, आपने पहले पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अब उस टाइम पे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं पता तो आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी, आप हर लाइन को ध्यान ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, राइट, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस क्या है पेपर में, इसको समझना या आंसर करना क्वेश्चंस का। तो आई थिंक आंसर करना हमारा पर्पस है इसमें से, राइट। तो पॉइंट ये है कि आपको, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप इसको ध्यान ध्यान से पढ़ोगे, हर वर्ड को समझोगे, पूरा ध्यान दोगे, पूरा फोकस करोगे समझने पे, ठीक है। आपने मान लो पढ़ लिया अच्छे से, सारा समझ भी आ गया, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, इसके बाद के व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग या अमेजॉन एंट्री। यार ये था तो कहाँ था ये, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। आप दोबारा जाओगे, दोबारा अपना क्वेश्चन सर्च करोगे, आंसर ढूंढोगे, जो आंसर मिलेगा उसको मार्क करोगे, दोबारा आओगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज क्विक शॉपिंग, डिजिटल, रिटेल या डिपार्टमेंटल। आप फिर जाओगे पैसेज पे, फिर अपना आंसर कंफर्म करोगे, फिर वापस आओगे। तो गाइस अगर आप 5 क्वेश्चन भी ऐसे कर रहे हो तो एक बार बताना मुझे, आप कितनी बार पैसेज पढ़ रहे हो, कितनी बार पैसेज पढ़ा आपने, बार बार आपने मतलब रेफर किया पैसेज को? 6 बार, एक 5 बार तो क्वेश्चन में और एक बार जो आपने पढ़ रहे थे पहले उस टाइम पे। तो अगर 6 बार अगर आप ये पैसेज पे अगर आप यूं करोगे ना, दैट इज व्हाट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आपको नहीं करना है एग्जाम में। रिवर्स रीडिंग का मतलब क्या है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस में से एक तो पहले आपको कंटेक्स्ट, या जिसको हम बोलते हैं ना जिस्ट ऑफ द पैसेज आपको समझना है कि यार पूरा पैसेज किस बारे में है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप पढ़ने क्या वाले हो उसके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो अब इससे क्या होगा, अब देखना जब मैं पैसेज पढ़ना शुरू करूंगा ना, अब जब मुझे क्वेश्चन नहीं पता थे तो ये हर लाइन इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, लेकिन अब जब मुझे क्वेश्चंस और कीवर्ड्स पता है ना, नाउ इट इज़ नॉट अ स्टोरी फॉर मी कि हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, नाउ इट हैज़ बिकम अ मिशन फॉर मी, ठीक है। तो मतलब अब ये मेरे लिए मिशन बन चुका है कि मुझे अपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अब होगा क्या, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा यहाँ तक मेरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे आते ही जैसे मुझे पता लगा कि मेरा आंसर है, मैं यहीं पे रुकूंगा, अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा, आंसर मार्क करूंगा और वापस आके यहीं से आगे पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से अब मुझे यहाँ पे आके मान लो दूसरा आंसर मिला, मैं रुका, मैंने दूसरा आंसर मार्क किया, आगे बढ़ा, यहाँ पे तीसरा आंसर मार्क किया, यहाँ पे रुका, मार्क किया, आगे बढ़ा, तो एक रीडिंग में मैंने 5 के 5 क्वेश्चन कर दिए। So the point is, this is the strategy to solve your reading comprehension, ठीक है, in the best and the in the least amount of time possible। तो ये आपको अप्रोच लेनी होती है हमेशा। कीवर्ड लिख लिया सभी ने, yes or no guys? Future of shopping, what allows quick shopping, advantages of brick and mortar store, and backbone of both digital and physical format। ठीक है, अब पढ़ते हैं गाइस। चलो, लास्ट वीक न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, पीपल नाउ स्पेंड मोर एट अमेजॉन देन वॉलमार्ट। ठीक है, तो लास्ट वीक्स न्यूयॉर्क टाइम आर्टिकल, पीपल नाउ स्पेंड मोर टाइम एट अमेजॉन देन एट वॉलमार्ट, अनाउंस दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर हैड बीन अनसीटेड बाय द ई कॉमर्स जाइंट। वॉलमार्ट, ये जो हम ये पढ़ते हैं ना बेस्ट प्राइस और ये सब जो खरीदते हैं, ये वॉलमार्ट की कंपनी है। तो वॉलमार्ट जैसे वेस्टर्न का, न्यूयॉर्क की, अमेरिका की बात कर रहा है कि अमेरिका में एक आर्टिकल छपा जिसमें क्या कहा गया कि अब लोग अमेजोन से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट। और फिर उसने आगे यही बताया कि इट हैज़ अनाउंस दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर दैट वाज वॉलमार्ट हैड बीन अनसीटेड बाय द ई कॉमर्स जाइंट विच इज़ अमेजोन, के अमेजोन ने उसको गद्दी से हटा दिया है। The Wall Street Journal reported that Amazon plans to open large retail locations akin to departmental stores. So, the Wall Street Journal reported that the Amazon plans to open large retail locations akin to departmental stores. मतलब Amazon भी ये अपने Walmart की तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलने की सोच रहा है। द फाइनल डिटेल्स ऑफ Amazon's planned entry to the regular retail sector, the very business that it disrupted, आर नॉट येट नोन। अब देखो यहाँ तक आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा अभी तक आपको,
ये होती है इसका बेनिफिट कि मुझे पता है यहाँ पे जो भी पढ़ लिया लेकिन मेरा आंसर नहीं आया अभी तक कोई भी. But one thing is for sure, how Amazon combines its digital and brick and mortar retailing strategies will define the future of shopping. तो ये है मेरा पहला आंसर. What will define the future of shopping? ये क्वेश्चन था यूं का यूं. क्या होगा? Amazon, the combination of digital and brick and mortar retailing strategies. तो retailing strategies would define the future. ये मुझे पता लग गया. What will define the future of shopping? मैं अपने क्वेश्चन पे आया. Combination of digital and brick and mortar retailing strategies by Amazon. Brick and mortar retailing strategies of Walmart? No. Amazon's entry into the regular retail sector? Yes, guys. What do you think is the right answer? What will define the future of shopping? Amazon entry? Nahi. Combination of digital and brick and mortar retailing strategies by Amazon. So only A is the correct option. ये मार्क किया आपने, वापस आ गए आप यहीं पे, यहीं से आगे पढ़ना शुरू करो. It is unlikely that Amazon will sell the same products in two shopping environments. There could be demarcation strategy as to what category of products will be sold through digital channels and what category mostly through the company's physical stores. ठीक है, तो देयर कुड बी a demarcation strategy as to what category of products will be sold through digital channels and what category mostly through the company's physical stores. There are several products that are bought by consumers routinely without much thinking. So there is not much joy in shopping for them. It won't be a surprise if most of this sort of shopping moves fully into the digital space, a format that allows quick shopping. अब ये देखो मेरा दूसरा आंसर. What allows quick shopping? Digital space. ये भी मेरा क्वेश्चन था एक. तो what of the following formats allows quick shopping? Digital, retail, departmental, both A and C, both A and B. यहाँ से मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है. What allows quick shopping? Digital shopping, not departmental or retail shopping, right? तो यहाँ से हमें दो आंसर मिल गए. आगे बढ़ते हैं. There are categories where the shopper would like to try out products in person before deciding to purchase them. So there are categories where the shopper would like to try out products in person before deciding to purchase them. This is particularly beneficial in apparel category. मतलब कपड़ों में सबसे ज़्यादा beneficial होता है. This is particularly beneficial in apparel category, which can often be a guessing game for customers shopping online because of the size and fit concerns की वजह से. There are also categories where personal advice from an expert on what suits the customer best can add a lot of value. Such products are best shopped for an in a brick and mortar store. Big data analytics and artificial intelligence are already the backbone of both digital and physical format shopping. ये आ गया आपका third answer. Big data analytics and artificial intelligence are already the backbone of both digital and physical format shopping. In the future, the role of technology will only get more prominent, more so in the case of online shopping. तो अब इसमें भी एक क्वेश्चन था कि which of the following is the backbone of both digital and physical format? Technology and consumers, customers and artificial intelligence, data analytics and artificial intelligence, science and technology, or both A and C. अब देखो मैं यहाँ पे C तो clearly mentioned है ही. देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया हमने कि डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑलरेडी द बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट. लेकिन आगे उसने क्या कहा? द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी काम करेगी. लेकिन दोनों फॉर्मेट में जो बैकबोन है वो बिग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो आई थिंक ऑप्शन सी इज माय आंसर. 3 आंसर मिल गए आपको पूरा पैसेज पढ़ के. फोर्थ क्वेश्चन देख लो अब अपना. ये जो बचा ये था इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, पढ़ के समझने वाला. व्हाट आर द एडवांटेजेस मेंशन्ड इन द अबव पैसेज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स? ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स मतलब जो दुकानों वाले जो स्टोर्स होते हैं, जो दुकानों पे होते हैं, फिजिकल जो स्टोर्स होते हैं, रिटेलिंग जो होती है. अब व्हाट आर द ऑप्शंस? व्हेन कंज्यूमर्स चूज अ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर, they do not need to worry about waiting, handling fees or damaged or lost packages. क्या ये बेनिफिट मेंशन है? The return policies available at brick and mortar stores offer a more simplistic and engaging process than their online counterparts. Return policies अच्छी हैं. Both A and B or D, the interactive service offered at brick and mortar store helps shoppers to get second opinions and more. Or all of the above. आई थिंक क्लियरली समझ आ रहा है कि जो वहाँ पे उसने बात की थी कि ऑनलाइन स्टोर में जहाँ पे कपड़ों की बात कर रहा था स्पेशली. ये देखो ये रहा.
There are categories where the shopper would like to try out products in person before deciding to purchase them. This is particularly beneficial in the apparel category, which can often be a guessing game for customers shopping online because of the size and fit concerns. These are also categories where personal advice from an expert, what suits the customer best, can add a lot of value. ठीक है, so ये advantages थी इसमें. So the interactive service offered at brick and mortar stores helps shoppers to get second opinions and more. So D was the correct option. मतलब मोटा स्टोर में आपको कहीं वेट नहीं करना पड़ता, हैंडलिंग फीस नहीं लगती, डैमेज और लॉस पैकेजेस कहीं बात हुई है पूरे पैसेज में सौरभ? नहीं. द रिटर्न पॉलिसीज अवेलेबल बाय ब्रिक एंड मोटा स्टोर, ये भी कहीं मेंशन नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर डी. एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड? एंटोनिम इज ऑपोजिट. तो अकिन कहाँ पे था अपने पास? ये रहा. So the Wall Street Journal reported that Amazon plans to open large retail locations akin to department stores. अकिन मतलब यहाँ पे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन. अकिन का ऑपोजिट क्या होगा? डाइवर्स, पैरेलल, एग्जैक्ट, रेलेवेंट और यूनिफॉर्म. Yes guys. Very good Priya. Very good Ritika. अकिन का मतलब होता है सिमिलर टू और सेम एज. ठीक है, तो सेम सिमिलर इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकिन. सो अकिन, अब देखिए ये सारे सिनोनिम्स थे इसके, पैरेलल, एग्जैक्ट, रेलेवेंट, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म वैसा ही होना, रेलेवेंट उससे जुड़ा हुआ, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा, पैरेलल उसके साथ साथ, लेकिन डाइवर्स होता है अलग अलग. सो द ऑपोजिट वेयर वुड बी डाइवर्स. ठीक है, चलो गाइज क्विकली फटाफट से मुझे अपना स्कोर बता दो. एंड इन द मीन टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द ultimate test series for phase 1. Now we've offered, a complete test series for phase 1, and tomorrow is the last day. Tomorrow midnight would be the last day of this this sale. Now in this course we are offering you more than 8,000 plus solved important questions, not just practice questions, solved questions, which include chapter wise tests, sectional tests, current affair tests are separate, and then there are full length tests where you can simulate your paper. And this would be, the best, let's say, the tool फॉर योर प्रेपरेशन अहेड. बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी लास्ट में बिल्कुल एंड में क्या करें, कौन सी वीडियो देखें? इतना टाइम नहीं बचा है कि आप वीडियो देख देख के कर पाओगे. सो व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस राइट नाउ. जितनी चीज़ आप प्रैक्टिस से इस टाइम पे पिक कर जाओगे, उतनी शायद आप वीडियोस देख देख के नहीं कर पाओगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो द बेटर अप्रोच इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मिले. एंड वी आर ऑफरिंग अ फ्लैट 60% ऑफ. द कूपन कोड इज TEST60. The link for this course has been given in the description of the video. You can go check it out, and if you want कि कहाँ से अच्छे questions practice करें, you can get benefited from there. And now chapter wise test for all the subjects, not just English guys, by the way, for all the subjects: English, quants, reasoning, ARD, ESI, general awareness, computers. There are chapter wise tests for all the subjects, sectional test for all the subjects, current affairs test for separately for current affairs exam, and then there are full length tests as well, right? yes level यही रहता है प्रतीक्षा. मैंने आपको बताया PYQs अगर आप देखो हमारे कोर्स में दिए हुए हैं आपको सारे, पिछले 5-6 साल के, 7 साल के, उसमें देखना आपको ये हमेशा ही ध्यान रहेगा कि ये समझ आएगा कि NABARD में पेपर कभी मुश्किल नहीं होता. द ओनली प्रॉब्लम इज पेपर लेंदी होता है, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है. तो यहाँ पे जो इस पेपर में जो गेम रहेगा ना, वो सारा आपका टाइम का रहेगा. पेपर सबको आसान लगेगा. तभी सोचो RBI में 30 में से कट ऑफ कितनी जाती है इंग्लिश में? 4.5. ठीक है, जबकि वो भी वो है, सेक्शनल है, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग है. ठीक है, और RBI में कट ऑफ जाती है 4.5, जबकि NABARD में कितनी जा रही है? 11.25, सॉरी 11.75, 11.25 उससे पिछले साल. तो NABARD की कट ऑफ इतनी ऊपर क्यों है? क्योंकि द पेपर इज अ लॉट इजियर, नंबर 1. नंबर 2, द ओनली चैलेंज इज हाउ क्विकली यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ठीक है, ये है गेम सारा. सेम मैथ्स में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, टाइम कितना है? 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं यार. मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि हम 120 में से 70 मिनट हम मेरिट सेक्शन को दे रहे हैं, 50 मिनट्स हम QRE सेक्शन को दे रहे हैं, क्वालिफाइंग वाले को. तो 50 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 20 मैथ्स के हैं, 20 क्वांट्स के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, 30 इंग्लिश के हैं, 70, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग वन बट नॉट.
तो आपको ये समझना है कि यू नीड टू फाइट इट आउट कि आधे मिनट में एक क्वेश्चन वाली एवरेज कैसे निकलेगी, नहीं निकल सकती ना, लेकिन आपको ये समझना है कि उस 50 मिनट में मैं कौन से 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं ताकि मेरा स्कोर मैक्सिमम आए। एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। याद रखना गाइस, द लिंक फॉर दिस सीरीज हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यू कैन ज्वाइन आवर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज and you can get benefited from it. So thank you so much once again, guys. How was the session? Was it helpful? Was it useful? Please do share your inputs with me. And for those who watch this session later on, please do let me know your constructive feedbacks in the comment sections of the video. So guys, before we wrap up, I wish you all the success in your endeavors ahead. I wish you, you know, I wish you I wish that you do really well in phase 1 and you crack, and I hope that I see you on the other side for your preparation for phase 2, right? So keep on working hard, guys. The little amount of time should be utilized as much as possible. So don't waste a minute. Keep on working hard. Keep on giving your best, and I'm sure you'll definitely come out with flying colors. So if you have any doubts, if you have any queries, please drop me an email at hello@edutap.co.in, or you can even call us on this number during the office hours. That is 8146207241. And if you want to check out our courses, this is the address, www.edutap.co.in. Thank you so much for the kind words, guys. Keep on working hard. 23 Priya, 24 Saloni, 24 Pratiksha, 27 Ritika, Neha 27. Very well done, guys. And then 24 Sarkari Naukri. Not bad at all. But you can still do better, guys. So keep up the good work, and I hope that you will find these sessions beneficial and useful for your preparations. So thank you for the trust and the faith that you've put in us. We are really obliged and humbled by that. Keep on working hard, guys, and I'm sure your perseverance and dedication will definitely get you across. So having said that, guys, I'll take your leave for today. Do share your experiences with us after the exam. Do let us know if you need us for anything before the exam, and I wish to see you on the other side. So keep your fingers crossed, keep on working hard, and just believe in yourself, guys. That is the last thing to say. Trust in yourself. If you feel that you deserve this, you can desire it. So I always believe first deserve, then desire. If you feel I deserve to crack this exam, you will. If you're still not sure what you're doing in this exam, then it's a different game altogether. So thank you so much once again. Happy learning to all of you, and good night, guys.